معزز خواتین و حضرات، ہمارے ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ وقت ہے تحریک بقائے اردو کے علمی ادبی اس پیج پر آپ کے روبرو ہونے کا۔ آپ کے ساتھ ہر روز ہم شام کسی نہ کسی علمی ادبی شخصیت کو ہی ملواتے ہیں، ان کے خیالات سے آپ مہمیز ہوتے ہیں، اور یہ پروگرامز جو ہیں غالباً چھٹا مہینہ ہے چل رہے ہیں، اور اس بیچ میں ہم نے بہت سی نادر و نایاب جو شخصیات تھی ان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ کو روبرو کروایا ہے، چاہے وہ محقق ہوں، دانشور ہوں، ادیب ہوں، افسانہ نگار ہوں، ناول نویس ہوں، ناقد ہوں، ادب اطفال کے ماہر ہوں، ہر فیلڈ سے جہاں جہاں سے بھی ہمیں ہمارے مہمان جو ہیں وہ رابطہ کر پائے ہیں، ہم ان تک پہنچ پائے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم جو ہے خدمت انجام دے رہا ہے۔ تو انہی پروگرامز کی کڑی آج کا ایک پروگرام یقیناً آپ محظوظ ہوں گے، چونکہ آج ہمارے درمیان جو مہمان ہیں کولکتہ سے ہیں، اور ان کا نام گرامی جو ہے ڈاکٹر دبیر احمد ہے۔ وہ ادیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور بہترین میں کہوں گا کہ دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج کا ان کا موضوع بھی بہت ہی اہم ہے، کلاسیکیت سے جدیدیت تک۔ تو ہماری آج کے اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض جو ہیں ہمارے سینئر نائب صدر جو ہیں جاوید انور صاحب ہیں، جو مدیر ہیں تحریک ادب کے بھی۔ تو آپ کے روبرو ہوں گے انتہائی خوبصورت اور معیاری گفتگو لے کر۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنے میزبان جاوید انور صاحب آئیں اور ہمارے مہمان دبیر صاحب کا استقبال کریں، اور یہ پروگرام بھی آپ بہترین انداز سے شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ عرفان عارف صاحب۔ دبیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ناظرین آج ہم پھر آپ کی خدمت میں جو ہے حاضر ہیں، ایک اپنا پروگرام جو ملاقات لے کر کے۔ اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت ہیں پروفیسر دبیر احمد صاحب، جن سے ہم گفتگو کریں گے کلاسیکیت سے لے کر کے جدیدیت تک، اور پھر مذہبی حوالوں سے بھی کچھ چیزیں آئیں گی، تحقیقی حوالوں سے بھی کچھ چیزیں آئیں گی۔ تو ناظرین، میں جو ہوں پہلے جو ہے آپ کو ان کا تعارف پیش کر دوں تھوڑا سا، تاکہ آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت جو ہے کس قدر جو ہے قابل قدر ہے۔ یہ پروفیسر دبیر احمد صاحب ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اردو، مولانا آزاد کالج کلکتہ سے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ رہے ہیں باقر گورنمنٹ ہاسٹل کے، پھر سپرنٹینڈنٹ رہے، جی بی ممبر کلکتہ گرلز کالج ہیں، آفیسر انچارج مولانا آزاد کالج، جی بی ممبر ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی، اور لائبریرین چیئرمین، لائبریری کے چیئرمین ہیں اردو اکیڈمی کے۔ 85 سے زیادہ پیپر جو ہے ان کے نیشنل سیمینارز میں پڑھے ہیں، اور جو ہے انٹرنیشنل سیمینار میں بھی ان کی پیپر جو انہوں نے پڑھے ہیں وہ اچھی خاصی ان کی تعداد ہے۔ کئی ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں، 14 کتابیں ہیں ہمارے دبیر بھائی کی۔ یہی کتابوں کا دیکھیے کہ اذہان و اشخاص، ایک کتاب شاہ ادب ظفر غانوی پہ انہوں نے بڑا کام کیا، مونوگراف بھی لکھا ہے۔ متاع فکر و نظر ہے، نظیر حیات اور شاعری، بنگال کا اردو ادب، ظفر غانوی حیات اور کارنامے، تو دبیر بھائی سبھی کنٹیکٹ۔ جی دبیر بھائی، آپ آپ دیکھ پا رہے ہیں مجھے دبیر بھائی؟ جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ناظرین جو ہے اتنا اہم، آپ دیکھیے انہوں نے جو فکشن پہ بھی لکھا ہے، جو ہے کلاسیکیت پہ لکھا ہے۔ میرا جی جو کہ ظاہر سی بات ہے جدیدیت کا بڑا نام ہے، ہلکا ربع ذوق کے بارے میں ظاہر سی بات ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں جتنا کام کیا، 38 برس کی عمر میں میرا جی نے پوری کتاب ایک ان کی ظفر غانوی پہ انہوں نے بڑا کام کیا، فکشن پہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ پہ بھی انہوں نے بہت لکھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ پریم چند پہ جیسے میں نے بتایا، تو فکشن، شاعری اور مذہب، کوئی بھی ایسا شعبہ جو ہے پروفیسر دبیر احمد صاحب کی
कलम से जो है वो छूटा नहीं है। तो हम इन्हीं तमाम चीजों पर आज दबीर भाई से गुफ्तगू करेंगे। दबीर भाई, आपका इस्तकबाल है, सलाम मैं पहले कर चुका हूं। आप मुझे जरा ये बताएं, नाज़रीन के भी वो चीजें आ रही हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल जो हमारा तो होता है वो यही कि आपकी तालीम और तरबियत के ताल्लुक से कुछ जो है हमारे नाज़रीन को आप बताएं, यहाँ तक का जो सफर है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अनवर साहब। सबसे इसके पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करूं और अपने नाज़रीन से मुखातिब होते हुए उर्दू ज़बान और अदब के सिलसिले में जो कुछ भी मेरे जहन में एक खाका तैयार है, उसके हवाले से मैं आप सबों से मुखातिब हूँ। मेरा अव्वलीन फरीज़ा तो ये बनता है कि तहरीक बक़ाए उर्दू के बिलखुसूस इरफान आरिफ साहब, जावेद अनवर साहब और दीगर अफराद का मैं शुक्रिया अदा करूं कि आप तमाम हज़रात ने मुझे इस लायक समझा और अपनी गुफ्तगू में मुझे शामिल करके यकीनन जो है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपने मुझ पे एहसान किया है, बल्कि ये कहूँगा कि आपने मुझे मक़रूज़ बना दिया है। जहाँ तक कि इब्तदाई दिनों का ताल्लुक़ है, मेरी पैदाइश 5 फरवरी 1969 ईस्वी में बिहार के ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर के एक छोटे से गांव में हुई। गांव के मदरसा में ही एक बुज़ुर्ग हाफिज़ व क़ारी जनाब क़ुतुबुद्दीन साहब दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे। मैंने सबसे पहले उनके सामने ही जान तलब मुस्तहक़ किया। 3-4 बरसों के बाद टैगोर और काजी नज़रुल इस्लाम की नगरी में चला आया। चूँकि वालिद साहब यहीं नौकरी करते थे, तो मैं शहर कलकत्ता चला आया और यहाँ के एक मशहूर स्कूल खिदिम मुस्लिम हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहाँ से मैट्रिक का इम्तहान 1983 ईस्वी में पास किया। उसके बाद मौलाना आज़ाद कॉलेज, जहाँ का मैं किसी ज़माने में तालिब इल्म था, आज वहीं दर्स व तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा हूँ। तो वहीं से मैंने हायर सेकेंडरी और उर्दू में BA ऑनर्स किया। उसके बाद तालीमी सिलसिला धीरे धीरे लहजा लहजा कलकत्ता यूनिवर्सिटी तक पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ से MA और PhD की डिग्री हासिल की। मेरे चचा हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब इंतहाई खुश नाजरीन, खलीक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अब जम्मू एंड कश्मीर से जो है इस चीज़ को कनेक्ट करना, मैं बनारस वाराणसी में हूँ, दबीर साहब कोलकाता में है, तो ज़ाहिर सी बात है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि दबीर साहब की शख्सियत के बारे में आपसे, तो जब तक वो कनेक्ट होते हैं मैं बता दूं आपसे कि ये शायर भी हैं, नज़्म लिखी है, नज़में भी लिखी हैं, तहरीक अदब के शुमारे में इनकी नज़में भी शाया हो रही हैं। जी दबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये मुझे लगता है जावेद भाई का नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो गया आज। तो अच्छा अच्छा। आप अपना तारुफ पेश कर रहे थे, वो जब तक आते हैं तो मैं उनको ऐड कर लूंगा। आप अपना तारुफ जारी रखें। जी अच्छा, आप मेरी आवाज़ सुन रहे थे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी स्टूडियो जी। पे हूँ, जावेद भाई भी आ गए हैं, मैं उनको भी ऐड कर लेता हूँ। जी अच्छा जी अच्छा। तो मैं ये जी बता जी रहा जी था मैं ये जी बता रहा था कि मेरे जी चचा हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब इंतहाई जी खुशखत, जी खलीक, इबादत गुजार जी और बाकायदा शायर थे। जी जी वालिद साहब को नावल और जी जी अफ़साने जी से ज़ौक़ था और जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे अदीब, जी अफ़साना निगार, शायर, मुहक़्क़िक़ और नाक़िद से हुई जिसे यकीनन जो है उर्दू दुनिया ज़फ़र बानवी के नाम से जानती और पहचानती है। मैंने जी उनसे अदब सीखा और अदब के निकात सीखे। बिलख़ुसूस वो तनक़ीद पे गुफ्तगू करते थे, लिसानियात के मुतालिक हमें कुछ बताते थे और आज जो कुछ भी मैं लिसानियात के सिलसिले में या तनक़ीद के मुतालिक गुफ्तगू कर पाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ज़फ़र बानवी साहब का बहुत अहम रोल इसमें रहा है। उन्होंने जिस तरह मेरी ज़हनी आबियारी की है और जिस तरह मुझे उन्होंने अदब सिखाया है, यकीनन जो है मैं उसे लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकता।
यही वजह है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मज़कूरा तीनों शख्सियतों ने मेरे किरदार की तामीर में जो रोल अदा किया है, यकीनन जो है मेरा तर्जियाती रुझान या जो गालिब इन्हीं लोगों का रहीने मिन्नत है। लहजा लहजा हर बात को नाप तोल कर बोलना, मुखालिफ व मुआफिक नज़रियात को हस्ब तौफीक खंगाल कर किसी नतीजे पर पहुंचना गोया मेरी फितरत सानिया बन गई है। 1993 की बात है, मुझे याद आता है कि बाज़ बातें लौहे हाफ़ज़ा पे मनकुश हो जाया करती हैं। यकीनन जो है 1993 की बात है, मैं सिविल सर्विस का इम्तिहान दे रहा था। मुझे वहाँ कामयाबी भी मिली, लेकिन वो सर्विस जो मुझे मिली उसमें मुझे जज़्बे की आँच नहीं मिल रही थी। फिर मैंने स्लेट का इम्तिहान दिया 1994 में और मुझे कामयाबी मिली और 1996 में मैंने लेक्चरशिप जॉइन किया। ज़ाहिर है कि सर्विस में आने के बाद जो है जिस तरह से मैंने अपने अंदर एक अदीब को पाया, मैं समझता हूँ कि मैं अपने पेशे के साथ इंसाफ करने लगा और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके मैं अपने बच्चों को जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है, और एक असातिज़ा के लिए फ़र्ज़ भी बनता है कि उसके अंदर जो कुछ भी होता है यकीनन जो है वो उसके शागिर्दों की चीज़ें हुआ करती हैं, अपने शागिर्दों को उसे लुटा लुटा देना चाहिए। यही वजह है कि मैंने इस जी पेशे को इख्तियार किया और पेशे को इख्तियार करने के बाद आज भी मैं दस-ओ-तदरीस के पेशे के साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी जी। नाज़रीन, मैं एक बात और आपको बता दूं कि 2009 में जो है प्रोफेसर दबीर अहमद साहब की ज़ाती कोशिशों से जो है मौलाना आज़ाद में एमए की तालीम जो है एमए का शोबा कायम हुआ था। सबिया सुंबुल एमए मोहम्मद इकबाल साहब और तमाम हजरात जिनका मैं नाम नहीं पढ़ पाया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दबीर भाई की इस प्रोग्राम को पसंद किया जा रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। खालिद नदीम बदायूनी साहब हैं और तमाम लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आपने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें भी आपने जो है जो है वो कयादत भी अंजाम दी है, तो इसमें क्या चीजें रही, मतलब किस तरह का जो है परेशानी आई, क्या किया आपको जो है एमए का शोबा कायम करने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी, 2009 की बात है। मौलाना आज़ाद कॉलेज, जो लोग इस कॉलेज से वाकिफ़ हैं, मैं ये बताता चलूँ कि इंडिया टुडे के मुताबिक ये कॉलेज हिंदुस्तान का वो पहला कॉलेज है जहाँ 6 लैंग्वेज की तालीम दी जाती है। मेरी मुराद उर्दू, फ़ारसी, क्या बात। अंग्रेज़ी, संस्कृत, बंगला, ये 6 लैंग्वेज जो है बंगाल के किसी कॉलेज में नहीं है। यहाँ का शोबा उर्दू बहुत पुराना है। वहशत कलकत्ती को आप जानते होंगे। वहशत कलकत्ती यहाँ के पहले उस्ताद हुआ करते थे। इस कॉलेज की बुनियाद 1924 में डाली गई। 1926 से यहाँ शोबा का क़याम अमल में आया। तालीम दस व तदरीस का सिलसिला उर्दू में भी शुरू हुआ और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शोबा जो है 1960 से शुरू हुआ, जहाँ परवेज़ शाहरी उस्ताद हुआ करते थे। अफ़सोस का मुकाम ये है कि नैक की टीम जब आती है कॉलेज में, तो नैक की टीम रिकमेंड करती है कि शोबा उर्दू को देखते हुए, इसकी कारकर्दगी को देखते हुए यहाँ एमए का शोबा कायम होना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सर जो मौजूद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, यहाँ नैक की टीम ने कहा है कि एमए होना चाहिए, लिहाजा हम लोग की पूरी कोशिश हो कि एमए किस तरह से किया जाए। दरख्वास्त गुजारी गई। मैं डीपीआई से मिलने गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने गया। उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे जौहर सरकार हुआ करते थे। मैंने जौहर सरकार साहब को अपनी निजी गुफ्तगू में एक जुमला कहा था, बंगला में मैंने कहा, तो उसे मैं उर्दू के सामने अपने कारीन के सामने पेश करना चाहूँगा कि सर देखिए, सरकारी अस्पतालों में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन सरकारी कॉलेजेस में लोग जाना पसंद करते हैं। क्या बात, इतना क्या सुनने के बात, बाद उन्होंने क्या कहा कि फिर कहिए आपने क्या कहा? तो मैंने कहा कि सर देखिए, सरकारी अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ इलाज सही से नहीं होता है। देखिए, सरकारी कॉलेजों में, सरकारी स्कूलों में लोग जाना पसंद करते हैं। उसकी कई वजूहात हुआ करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ करता है बहुत शानदार हुआ करता है। नीज़ वहाँ के जो असातिज़ा होते हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत मयारी होते हैं या फिर दूसरे कॉलेज में मयारी नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन वहाँ का जो निज़ाम होता है, निज़ाम तालीम होता है, या जो गवर्नमेंट से जो फंडिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, जिससे हमें किसी भी तरह की दुश्वारी पेश नहीं आया करती है। जिन्होंने कलकत्ता के मौजाद कॉलेज को देखा है, आप हमारा जो कमरा जो है, वो कम से कम जो है
1000 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट का कमरा हुआ करता है। तो हम लोगों ने कोशिशें की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी चूँकि मदर डिपार्टमेंट है, वहाँ जो है दरख्वास्त गुजारी गई कि नैक का ये कहना है, हम लोगों को इस तरह से काम करना है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोगों ने दरख्वास्त दी, और दरख्वास्त देने के बाद जो है वहाँ से सिग्नल मिला कि ठीक है, इंस्पेक्शन की टीम जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जाएगी। मुझे कहने में ज़रा भी तामुल नहीं कि लोग उर्दू की रोटी खाते हैं, लेकिन उर्दू वालों के पेट पे छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। उस ज़माने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू शहनाज नबी हुआ करती थी। एक ही रोज़ उर्दू डिपार्टमेंट में एमए के लिए और अंग्रेज़ी के लिए जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की टीम आती है। अंग्रेज़ी वालों को सिग्नल मिल गया और उर्दू वालों को ये कहा गया कि यहाँ जो है 3 क्लॉज उन्होंने लगाए। एक तो ये था कि यहाँ के कमरे बहुत छोटे हैं। मुझे अफ़सोस होता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2 कमरे जो वहाँ मख्तस किए गए हैं, दोनों कमरे शायद हमारे कॉलेज के एक कमरे में दाखिल हो जाएँगे। दूसरा पॉइंट था कि यहाँ किताबें नहीं हैं। मौसूफ़ा दौरान गुफ्तगू ये कहने लगी कि अरे यहाँ गिलक्रिस्ट की रखी हुई किताब है। मैं तो इस किताब को तलाश करते करते इलाहाबाद पहुंच गई। अब देखिए, एक सांस में कहती है कि यहाँ किताबें नहीं है और दूसरी सांस में कहती है वो किताब जो मखतूता जो गिलक्रिस्ट ने लिखा था वो हमारे कॉलेज में मौजूद है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये लगाया कि हमारे यहाँ के असातिज़ा जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं। मैं ये बताता चलूँ अपने नाज़रीन को, अपने सामीन को कि मगरबी बंगाल में 2 तरह के कॉलेजेस हैं, कमोबेश 600 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 67 कॉलेजेस प्योर गवर्नमेंट है। हम लोग का तबादला एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में हुआ करता है। हम लोग सरकारी आदमी हुआ करते हैं। गैर सरकारी कॉलेजेस जो हैं वहाँ का कोई तबादला नहीं होता है, कि वो हमेशा जहाँ ज्वाइन करते हैं वहीं से रिटायर होते हैं। तो अब बताइए कि हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन से हम लोग का इंतखाब हो रहा है और दूसरे कॉलेज में कॉलेज सर्विस कमीशन से इंतखाब होता है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंतखाब होने वालों के असातिज़ा के मुतालिक ये जुमला कहना कि यहाँ के असातिज़ा अप टू द मार्क नहीं है, निहायत अफसोस का मुकाम उस वक्त था। मैंने फिर ज़ाती कोशिश की, कुछ सियासी हरबे भी इस्तेमाल किए गए, उनके खिलाफ जुलूस निकाले गए, उनके पुतले जलाए गए, यहाँ तक कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी मजबूर हो गई कि आप किनको बुलाना चाहते हैं बुलाइए, ताकि आपके यहाँ शुबा कायम किया जाए। हैरत इस बात की थी कि अंग्रेजी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया था, उर्दू के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था। और ये इस तरह से जो है 3 क्लॉजेस पेश करना तो शदीद हैरत की बात थी। बहरहाल उसके बाद फिर मेरी जाती कोशिश हुई, तो उस वक्त जो है उन लोगों ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप किनको बुलाना चाहते हैं जो आपको यह सिग्नल देंगे। उसी वक्त मैंने प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनीफ़ी साहब से बात की, जो मेरे यूनिवर्सिटी के उस्ताद हुआ करते थे। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल मौलाना आज़ाद कॉलेज में शोबा एमए का शोबा कायम होना चाहिए। और जब वो वहाँ से आए और उन्होंने कहा ग्रीन सिग्नल मिल गया हमें। तो ये तकरीबन 5-6 महीना जो है हमारा सेशन लेट हो गया। ये तो उर्दू वालों की कारकर्दगी रही है। तो भाई मेरा ये सवाल है कि भाई हम उर्दू की रोटी खा रहे हैं, उर्दू के सिलसिले में जो है हमारी गुफ्तगू होती है, हमारी शनाख्त बनती है, और उर्दू की वजह से जो है हम पहचाने जाते हैं दूसरे शहरों में या दूसरे ममालिक में पहचाने जाते हैं। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो हम इस तरह से अपनी तंग नज़री का सबूत दे करके जो है क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं? मेरा ख़्याल ये है कि शायद ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि भाई हम उर्दू से सिर्फ़ हम ही फ़ायदा उठाते रहें, दूसरे लोगों को फ़ायदा हासिल नहीं होना चाहिए। जी दबीर भाई, इसके साथ ही एक जो है एक सवाल और है जहन में कि जैसे कि कॉलेज के दूसरे असातिज़ा को जो है एमए, एमफिल या पीएचडी शायद करने की सहूलत जो है नहीं है वहाँ जो लोग तालीम हासिल करते हैं, जैसे आपने जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप जी, जी, जी। असातिज़ा में से हैं, तो वहाँ जो है ऐसा भी कोई वाकया कुछ है मामला इस तरह कानून की भाई वहाँ जो दर्स व तदरीस अंजाम दे रहा है वो एमफिल नहीं कर सकते या पीएचडी नहीं कर सकते, या कुछ इस तरह की बातें भी हैं? जी, जी, मेरी ज़ाती जंग जो है यूनिवर्सिटी से अभी भी चल रही है इस सिलसिले में भी कि 2009 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एमए हम लोग एमफिल भी करवाएँ और पीएचडी भी करवाएँ। इसलिए कि हमारे यहाँ एमए का शोबा तो कायम हो गया। हमारे यहाँ एमए जी में जी। 37 सीट्स है। उस वक़्त भी मोहतरमा ने रखना डाला था, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। आज भी वही सूरत-ए-हाल है, आज भी हम लोगों को परमिशन नहीं मिला कि हम पीएचडी करवा सकें या एमफिल करवा सकें। सवाल ये पैदा होता है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये हुक्म है कि कॉलेज के असातिज़ा हो या यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हो, अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर है तो वो 8
बच्चों की तरबियत कर सकता है, पीएचडी करवा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 6 की तरबियत कर सकता है या 4 की तरबियत कर सकता है। लेकिन आप देखिए हर 2009 में हमारे यहाँ शोबा कायम हुआ। हमारे कॉलेज में फिजिक्स में सिर्फ ऑनर्स है, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ ऑनर्स है। यहाँ के असातिज़ा पीएचडी करवा रहे हैं, एमफिल करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ एमए का शोबा है, लेकिन अभी तक के कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने मुझे परमिशन नहीं दिया है। ये यूनिवर्सिटी पे हर्फ तो यकीनन आ रही है, लेकिन यहाँ शोबा उर्दू जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसका ज़्यादा दखल रहा है। वो लोग भी अभी तक के मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं और बार-बार ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ओरिगेट लेटर भेज देते हैं वहाँ से। मैंने अपना ज़हन बना लिया है कि अब जो है लॉकडाउन का जब मामला सब ठीक हो जाए तो यकीनन जो है मुझे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस करना चाहिए। मुझे याद आता है प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का एक जुमला, उन्होंने बहुत शुरू में मुझे कहा था कि दबीर तुम केस करो, तुम फर्स्ट हियरिंग में तुम जीत जाओगे। मिलना चाहिए। हमारे यहाँ से 37 बच्चे फारिग होते हैं, 30 बच्चे फारिग होते हैं। ये बच्चे आखिर कहाँ जा करके जो है एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे। ज़ाहिर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी जब जाते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। वो अपने बच्चों का पहले इंतखाब करते हैं, हमारे बच्चों को जो है हाशिए पे रख दिया करते हैं। तो हमारे यहाँ से बच्चे कौन तालीम हासिल करेंगे? कौन आकर हमारे से एमए करेंगे? अगर उनको उनका मुस्तकबिल ताबनाक नज़र नहीं आएगा, अगर उन्हें दूर से रोशनी नज़र नहीं आएगी, तो यकीनन जो है ये बच्चे फिर उर्दू में एमए करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुझे आज से 4 साल कबल जो आलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, निहायत ही खलीक आदमी बेचारे, अबू तालिब साहब, वो मुझे चाहते थे कि मैं आलिया यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर ज्वाइन करूँ। मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे अपने कॉलेज से मोहब्बत है। मैं उस कॉलेज में क्या बात है। मैंने जिस कॉलेज में तालीम हासिल किया है, वहीं से मैं आज असातिज़ा हूँ, आज मैं उस्ताद की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि जो ये मेरी पहली मोहब्बत है और इंसान पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता है। मैंने इसलिए आलिया यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर की नौकरी को मैंने त्याग दिया ताकि मैं अपने कॉलेज की खिदमत कर सकूँ, शोबे की खिदमत कर सकूँ, उर्दू की खिदमत कर सकूँ। लेकिन अगर इसी तरह से रखना अगर लोग डालते रहेंगे, तो यकीन जानिए मैं मजबूर हो जाऊँगा, मेरा कदम मजबूर हो जाएगा कोर्ट तक के जाने के लिए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं दबीर साहब यकीनी तौर पर कोशा हैं। अब देखिए जो प्रोफ़ेसरी, हालाँकि लोग कोशा रहते हैं कि प्रोफ़ेसरी लग जाए, कहीं यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। लेकिन यहाँ आप खिदमत खुद देखिए कि बकौल दबीर साहब के खुद कि इनको आलिया यूनिवर्सिटी से मिला है, ऑफ़र में आया है और इन्होंने ये नहीं किया, बाकायदा तमाम चीज़ें ये जानते हैं, तमाम जो है जो भी लवाज़िमात है वो सब पूरे करते हैं, किताबें हैं इनकी जैसा मैंने ज़िक्र किया। तो दबीर साहब मैं इसके बाद ज़फ़र उगानवी साहब पे आपने बड़ा जो है लिखा है, तो जैसा कि अभी जो है ज़िक्र आया कि आपका उस्ताद भी जी। रहे, मानवीय उस्ताद भी रहे, आपने जो है बहुत माना। लेकिन इतनी चीज़ें लिखने की सिर्फ़ यही वजह तो नहीं हो सकती कि जो है आप उनकी तनकीद से बहुत मुतासिर थे, या जो है क्या कहते हैं आपको उन पर बहुत ज़्यादा वो था, कुछ और भी चीज़ें होंगी। और दूसरी बात है कि ज़फ़र उगानवी का तज़किरा जिस तरह आप कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि इतना तज़किरा जो है हिंदुस्तान तो या कलकत्ता में मेरे ख्याल से नहीं होता ज़फ़र उगानवी का। जो हाँ। रसायल आप देखें, जो मज़ामीन वगैरह हैं, तो उनके बारे में ज़रा-सा आप बताएँ, इसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब अदम तवज्जुही है या फिर बहुत ज़्यादा चूँकि इल्म इल्म पहले से हो गया है, तो इसकी क्या वजह? फातिमा खातून, सीमा सगीर साहिबा, प्रोफ़ेसर सगीर अफ़राहीम साहब, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाज़रीन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है। जी दबीर भाई, ज़फ़र अ, उगानवी साहब के ताल्लुक से। जी, जहाँ तक कि ज़फ़र उगानवी साहब का ताल्लुक है, देखिए हर शख्स किसी न किसी से मुतासिर होता है। 25 फरवरी 1969 में जहाँ तक कि मेरे लौहे हाफ़ज़ा का ताल्लुक है, मुझे याद आता है 25 फरवरी 1969 में ज़फ़र उगानवी साहब ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू ज्वाइन किया था। यहाँ आने के बाद उन्होंने एक तहरीक चलाई। वो तहरीक ये थी कि बच्चे उस ज़माने के पीएचडी नहीं कर रहे थे, तहक़ीक़ का काम नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा कि 25 फरवरी 1969 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से कब्ल ज़फ़र उगानवी साहब उर्दू अफ़सानवी अदब में अपनी शनाख्त मुस्तहकम कर चुके थे। जी, जी, बिल्कुल। 20वीं सदी लगता में है। छप रहे थे, शबकों में छप जी, जी। रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। जदीदियत की जो ट्रेंड चल रही थी उस ज़माने में, सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहंद्रा, अहमद हमेश, जी, जी, उनके जी। साथ-साथ ज़फ़र मजीद उगानवी का अमजद जी। नाम ट्रेंड सेटिंग है, मजीद इन लोगों का नाम जो है ये जदीदियत के हवाले से लिया जाता है। जी, ज़फ़र उगानी साहब जब कलकत्ता आए तो उनके खिलाफ भी एक मुखालफत की फ़ज़ा तैयार हो गई।
कोई लोगों ने मुखालफत करना शुरू कर दिया। भाई सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी अगर काम करना चाहे तो उसके खिलाफ हम सदाए एहतजाज बुलंद करते रहें। लेकिन धीरे धीरे उनकी शख्सियत थी कि उन्होंने तमाम लोगों को जो है अपना हमनवा बना लिया। उसके बाद उस जमाने तक के जो है शोबा उर्दू बांग्ला डिपार्टमेंट के साथ अरबी, पर्शियन, उर्दू, बांग्ला डिपार्टमेंट सब MIL डिपार्टमेंट कहलाया करता था, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जफर साहब की जाती कोशिशों से उस जमाने में उन्होंने अकबाल सदी मनाई थी, उसी दौरान उन्होंने शोबा उर्दू का अलग कर लिया। तो मैंने ये देखा कि यकीनन जो है जफर साहब के अंदर जो कायदाना सलाहियत है, जो तंजीमी सलाहियत है और जो अदबी सलाहियत है, वो तो बिल्कुल हर कोई जानता है कि बीच का वर्क के हवाले से जफर साहब बहुत अच्छी तरह से जाने और पहचाने जाते हैं। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने अलामती कहानियां लिखी हैं, तर्जीदी कहानियां लिखी हैं, बल्कि जफर साहब के यहाँ बाज ऐसी कहानियां भी आती हैं, मिलती हैं, जिसको हम अलामती और तर्जीदी के जुमरे में नहीं रखते हैं। मेरी मुराद जो है केचुआ, निकला जो हरफ दुआ, कागा चुन चुन खाइयो, पहलोटी का कर्ब, ये वो अफसाने हैं, या पानदान, ये वो अफसाने हैं जो यकीनन जो है जफर साहब की सलाहियत पे दाल है। लिहाजा जब मैंने उन्हें देखा और MA के दौरान जब वो क्लास कर रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर हुआ। और जो गुफ्तगू करने का अंदाज था, बच्चों से जिस तरह से हम कलाम हुआ करते थे, क्लास में जिन निकात की तरफ रोशनी दिया करते थे, उससे मैं बेहद मुतासिर हुआ। लिहाजा मैंने जब MA करने के बाद जब तहकीक के सिलसिले में जो कुछ भी अपना जो है तलाश करना चाहा, तो पहली फुर्सत में मैंने ज़फ़र गानवी साहब का नाम इंतखाब किया कि ऐसी शख्सियत पर मुझे काम करना चाहिए। मैंने उन पे काम किया और तकरीबन 4 साल की मुद्दत पे मैंने तहकीकी काम मुकम्मल किया और वो किताब जो है मुनस्सह शहूद पे भी आ गई। कई तरह से ज़फ़र साहब की शख्सियत बनती है। एक तो अफ़साना निगार की हैसियत से बनती है, शायर की हैसियत से बनती है, मुदीर की हैसियत से बनती है कि वो पटने से भी अक़दार निकाला करते थे, फिर कलकत्ते आए तो यहाँ से भी उन्होंने अक़दार निकालना शुरू किया और उसके बाद बहैसियत उस्ताद उनकी शख्सियत बनती है। ज़ाहिर है कि ये कहा जा सकता है, मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि ज़फ़र गानवी एक दबिस्तान का नाम है, एक अंजुमन का नाम है, एक ऐसा दबिस्तान जिसने हमेशा बच्चों की ज़हनी आबियारी के मुतालिक ही सोचा है, जिन्होंने हमेशा बच्चों को बैठ करके उस अदब के निकात सिखाए हैं। ज़ाहिर है एक ऐसा शख्स जो है बहुत खाल-खाल पैदा होता है। गरचे आज ज़फ़र साहब हमारे दरमियान नहीं है, बावजूद इनके उनकी तहरीरें हमारे दरमियान हैं, उनकी गुफ्तगू, उनका लहजा, उनके काम करने का अंदाज़, बल्कि जब वो यहाँ कलकत्ते में मगरब बंगाल में बल्कि कह लीजिए कि माइटी कमीशन का क़याम अमल में आया तो उसके पहले चेयरमैन हुए। उनकी तंज़ीमी सलाहियत को देखकर हुकूमत वक़्त ने उन्हें पहला जो है चेयरमैन बनाया और जब कॉलेज सर्विस कमीशन के मेंबर भी हुए, तो भला एक शख्स जो है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 10 तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, वो अफ़साने भी लिख रहा है, वो शख्स जो है शायरी भी कर रहा है और कॉलेज सर्विस कमीशन का मेंबर भी है और ये माइटी कमीशन का चेयरमैन भी है। तो क्या ऐसे शख्स को हम दबिस्तान नहीं कह सकते? ऐसे शख्स को हम अंजुमन नहीं कह सकते? यकीनन कहा जा सकता है। हमें किसी भी शख्सियत की कारकर्दगी से मुतासिर होने के बाद अपने फ़राग़दिली का सबूत देना चाहिए कि यकीनन जो है वो शख्स जो है उसने बहुत कुछ हमारे लिए असासा छोड़ रखा है, जिसके बनाए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह से रामचंद्र वनवास को जा रहे थे, आपको याद होगा कि उनके पीछे-पीछे जो है उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी चल रहा था। लेकिन लक्ष्मण कभी भी राम के उस नक्श पा पे पाँव नहीं रख रहा था, इसलिए नहीं रख रहा था कि इसकी 2 वजह थी। एक वजह तो ये है कि अपने भाई के तक़द्दुस का ख़याल था। दूसरी वजह ये थी कि लक्ष्मण अपनी शनाख्त मुस्तहकम करना चाह रहा था। मैं समझता हूँ कि ज़फ़र गानवी साहब कलकत्ते आने के बाद जो कुछ भी उन्होंने अख्तर हुरैनवी साहब से हासिल किया था, जमील मज़हरी साहब से हासिल किया था, उसे यहाँ एक अपना नक्शे-पा तैयार किया और अपनी शनाख्त मुस्तहकम करने के बाद जो है उन्होंने साबित कर दिया कि यकीनन अगर इंसान के अंदर में सच्ची मोहब्बत उर्दू से हो, ज़बान से हो, सक़ाफ़त से हो, तहज़ीब से हो, तो वो शख्स बहुत देर तक के जो है
ادب میں یاد کیا جاتا ہے اور جاتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظفر غانوی صاحب کی شخصیت ایسی ہی رہی ہے جو دیرپا ہے، اور ہمیشہ ہمارے درمیان، ہماری گفتگو میں، ہمارے افسانوں میں، ہماری کہانیوں میں، اور جب بھی جدیدیت کی بات آئے گی ظفر صاحب یاد کیے جائیں گے۔ جی، یہ تو دبیر بھائی یقینی طور پر ظفر صاحب کی شخصیت کی کئی جہات ہیں، شاعری بھی انہوں نے کی، لیکن دیکھیے فکشن کی بات آپ نے گفتگو کی، لیکن جب جدید فکشن کی بات آتی ہے تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ بلراج مہندرا، سریندر پرکاش اور مجید امجد پاکستان سے یہ نام عام طور پہ سامنے آ جاتا ہے۔ ظفر جی جی غانوی صاحب کی کیا یہ وجہ بھی رہی ہے کہ اتنی جہتیں تھی ظفر غانوی صاحب کی اور اتنا کام وہ کرتے تھے؟ اچھا، ان لوگوں کے اندر سے بلراج مہندرا صاحب شعور نکالتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ان کی جاب تھی اور افسانے لکھتے تھے، کچھ اور کام کرتے تھے۔ سریندر پرکاش صاحب کا بھی معاملہ یہی تھا، اتنی ان کی شخصیات کی اتنی جہت نہیں تھی، نہ اکیڈمک تھی نہ کچھ تھی۔ مجید امجد صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے، اتنے طور پہ وہ غور نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ناقدین کا جو رویہ رہا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، تو ان تینوں کے بہت پیچھے ظفر غانوی صاحب کو رکھا جاتا ہے۔ تو کیا اس کو عدم توجہی کہیں گے یا کیا کہیں گے اس کو، یا کچھ دوسری چیزیں ہیں؟ کیونکہ جیسے اخبار نکالتے تھے ظفر صاحب، بلراج مہندرا صاحب شعور نکالتے تھے، شعور کا بھی اپنا ایک معیار ہے، میں ملا ہوں بلراج مہندرا صاحب سے، واقعی شخصیت ہے، لیکن بہرحال مطلب اس بیچ میں ظفر غانوی صاحب کہیں کھو جاتے ہیں۔ تو مطلب آپ چونکہ ناقد بھی ہیں، آپ نے مضامین بھی لکھے ہیں، فکشن بھی لکھے ہیں، تو بحیثیت تک ناقد کے بتائیے کہ کیا مطلب اس طرح بھی کچھ ہوا ہے یا کچھ عدم توجہی ہو گئی ہے اس طرح؟ دیکھیے، بالکل آپ نے بیان فرمایا کہ عدم توجہی کی وجہ ہے۔ ہوا یہ کہ ظفر صاحب پٹنہ سے کلکتہ چلے آئے۔ آج بھی کلکتے کے باہر جو لوگ ہیں، میری مراد دہلی میں ہیں، مرکز میں ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنگال میں صرف بنگلہ ہی زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ظفر صاحب کو لوگ حاشیے پہ سمجھ رہے تھے۔ اگر ظفر صاحب بنگال کے بجائے بہار میں ہوتے یا دہلی میں ہوتے یا علی گڑھ میں ہوتے تو ان کی شناخت اس طرح سے مجروح نہیں ہوتی، جس کی شکایت آپ بھی کر رہے ہیں۔ اب میں نے بھی اپنی تھیسس میں اس کی شکایت کی ہے۔ میں نے تو اپنی تھیسس میں، بلکہ جب وہ چھپی نہیں تھی تو میں نے جملہ لکھا تھا، میں نے جملے کو نکال دیا کہ ظفر صاحب کلکتے آنے کے درمیان بونوں کے درمیان مطمئن ہو گئے۔ کیا بات ہے جی۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے ابھی اپنی گفتگو میں پہلے یہ کہا ہے آپ کو، ہمارے تمام ناظرین اس بات کے گواہ ہیں کہ ظفر صاحب 1969 میں جب کلکتہ آئے، اس سے پہلے وہ ادبی دنیا میں اپنی شناخت مستحکم کر چکے تھے۔ اس زمانے میں کلکتے میں سوائے پرویز شاہدی کے کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا ہے جو اپنی شناخت مستحکم کر چکا ہو۔ یہاں آنے کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں جو ہے بالکل مطمئن کر دیا کہ ارے اب کو کیا لکھنا ہے، پڑھنا اب کیا ہے نہیں ہے۔ تو میں نے ظفر صاحب سے ایک بار ایک سوال کیا تھا نجی گفتگو میں، ان کے گھر پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ سر آپ نے بہت کم افسانے لکھے ہیں، آپ کا صرف ایک ہی بیچ کا ورق افسانی مجموعہ آیا، اور دیگر جو افسانے ہیں آپ نے انہیں ترتیب بھی نہیں دیا، اور وہ کتاب شکل میں بھی کہانیاں نہیں آئی ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، میں اس طرف بھی بعد میں آؤں گا، اپنے مضمون انہوں نے لکھا ہے کہ میں کتنے سے زیادہ کیا پر یقین کرتا ہوں۔ میں نے کتنا لکھا نہیں، میں نے کیسا لکھا میں نے کیسا لکھا اس پہ یقین کرتے تھے۔ میں نے پھر کاؤنٹر سوال کیا کہ سر یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں کتنے میں، لیکن پریم چند نے 300 سے زیادہ کہانیاں لکھی ہیں، یا صغیر افراہیم صاحب موجود ہیں، انہوں نے پریم چند نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جعفر رضا کے بعد اب صغیر افراہیم صاحب جو ہے ماہر پریم چند کہلا رہے ہیں، اور کہلانا بھی چاہیے، انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے پریم چند یا فکشن کے حوالے سے، بالکل پریم چند کو جس طرح انہوں نے کھنگالا ہے، جس طرح سے پھر نئے سرے سے منظرنامے پہ لانے کی کوشش کی ہے یا نئی دریافت کی ہے صغیر افراہیم صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ہے انہوں نے زیادہ لکھا ہے۔ تو ظفر صاحب نے کم لکھے، باوجود اس کے کتنا لکھا، کیسا لکھا، اس سوال میں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً جو ہے میں نے کم لکھا ہے، لیکن کیسا لکھا یہ اس کو دیکھو۔ آج بھی میں کسی کا نام لے کر کے جو ہے یہ شکایت کرنا نہیں چاہتا، لیکن آج بھی ظفر غانوی کا ایک افسانی مجموعہ بیچ کا ورق جس میں کل 11 کہانیاں ہیں، آج بھی وہ کہانیاں یقیناً ہمیں دعوت فکر و نظر دیتی ہیں۔ میں ابھی
उन कहानियों पे काम कर रहा हूँ। मैंने तजिया करवाया है, बहुत सारे लोगों ने तजिया कर दिया है। सगीर साहब बैठे, उन्होंने भी तजिया किया है। शाफी कदवाई साहब ने तजिया किया है। शबीर हनफी साहब ने एक छोटा सा मजमून लिखा है, बहुत मेरे लिए वही तबर्रुक है। अबुल कलाम कासमी साहब ने लिखे, जावेद कुद्दूस साहब ने लिखे, तो और अली सफ़ी साहब ने लिखा, और बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो इससे क्या है कि मैं ज़फ़र उगानवी साहब को एक बार फिर मंजरनामे पे पेश करना चाहता हूँ। और जो सवाल आपका है कि ज़फ़र गानवी साहब को वो मुकाम नहीं मिल सका जो सुंदर प्रकाश को, बलराज मेहंद्रा को, अहमद हमेश को या मजीद साहब को मिला है, यकीनन जो है ज़फ़र साहब को मिलना चाहिए था। इसलिए कि उन्होंने एक तो कलकत्ते में जो है अपनी उम्र बसर की, और अगर दिल्ली में होते, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली में होते, अलीगढ़ में होते, तो आज उनकी जो है शनाख्त बन जाती। आज क्या वजह है कि जैसे आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र इंतखाब कलकत्ते में या हैदराबाद में या दूसरे छोटे शहरों में, हैदराबाद तो खैर बहुत बड़ा शहर है, दूसरे छोटे शहरों में आपकी नज़र इंतखाब नहीं पहुंच पाती है। इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि भाई आप वहां तक नहीं, आपकी रसाई नहीं हो पाती है। लेकिन दिल्ली में जो लोग मौजूद हैं, जामिया में है या जेएनयू में है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में या अलीगढ़ में या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, आपकी नज़र इंतखाब वहां पहुंच जाती है कि फलां फलां साहब वहां पर हैं। ठीक उसी आए, और यहाँ आने के बाद जो है लोगों ने उनके हाशिए पे रख दिया। यही वजह कि एक दफा जो है बहुत पहले किसी ने लिखा था, गोपी चंदारम को मुखातिब करते हुए लिखा था कि आप तो जब अफसाने की महफिल सजा रहे थे, अफसाने पर जब सेमिनार कर रहे थे, तो बॉगी भर भर करके जो है दूसरी रियासतों से लोगों को ले गए, लेकिन कलकत्ते से किसी को नहीं ले गए। तो यकीनन ये इस बात पे दाल है कि अगर ज़फ़र साहब कलकत्ते के बजाय दूसरे बड़े शहर में होते तो उनकी शनाख्त कुछ और ही होती। जी। दबीर भाई, अभी ये ज़फ़र उगानवी साहब के ताल्लुक से नाज़रीन आपने देखा, दबीर साहब ने अच्छा दबीर भाई, उनके जो अफसाने थे वो तो बिल्कुल जो है जदीद तर्ज के थे, जैसा कि अभी जिक्र हुआ, लेकिन शायरी में उनकी जो है वही क्लासिकियत का असर तकरीबन ज्यादा था जदीदियत से। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, ज़फ़र साहब के बारे में मैंने कहा कि वो शायरी भी करते थे। उन्होंने एक जगह ये लिखा है कि मैं शायरी भी करता हूँ और अफसाने भी लिखता हूँ, लेकिन शायरी में मुझे जज्बे की आंच नहीं मिलती है, उन्होंने जुमला कहा था। तो बाज़ अशार तो ऐसे हैं जो यकीनन हमें अपील करते हैं। जैसे एक शेर उनका मुझे याद आ रहा है कि ऊँट भूखा सफ़र से लौटेगा, ऊँट भूखा सफ़र से लौटेगा, जंगलों में बबूल रहने दो। ये देखिए, ये जो शेर का मयार है, यकीनन जो शेर का मयार है, इससे अंदाज़ा होता है कि ज़फ़र साहब के यहाँ एक शायर सांस लिया करता था। वो शायरी और भी मैं कुछ शेर आपके हवाले करना चाहूँगा कि ज़फ़र साहब ने जो शायरी की है, उस शायरी के हवाले से चंद अशार मैं अपने नाज़रीन के सामने पेश करना चाहूँगा कि जैसे एक छोटी सी नज़्म, भिखारी। फिर किसी ऐसे भिखारी को बुलाओ जो तुम्हारी जेब में मांगा हुआ एक पैसा डाल दे, फिर तुम्हीं से हाथ फैलाकर कहे एक सिक्का दो खुदा के नाम पर। एक छोटी सी नज़्म है। और मुश्तरका खुदकुशी उनकी एक नज़्म है। लिखते हैं कि रात अपना लहू पी के कुछ इस तरह नाचती रह गई, वक्त ने एक करवट जो ली, महफिलों पे समा बन गया। शबनमी आंख से एक सूरज गिरा, तीरगी में हवा के झूमर लटकते रहे, प्यार से हम तुझे देखते रहे। मेज पर चाय की एक प्याली में कुछ लोग हंसते हुए गिपरे, खुदकुशी का मसला हल हुआ। तो ये जो है उनके यहाँ जो शायरी है, जो नज़्म है या जो गज़लें उन्होंने कही हैं, यकीनन जो है ज़फ़र साहब के ये कहा जा सकता है कि चूँकि उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ भी किया है कि मुझे वहाँ जज़्बे की आँच नहीं मिलती है, लिहाज़ा ये कह सकते हैं कि ज़फ़र साहब जो हैं बहैसियत मजमूई अफ़साना निगार, नाक़िद के हैसियत से हमारे सामने आते हैं। लेकिन कभी-कभी उन्होंने तफ़न्नुन तबा के लिए, ज़ायक़ा बदलने के लिए जो शायरी भी की है, लेकिन शायरी हमें यकीनन अपील करती है। जी, जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने नज़्में सुनी दबीर साहब से, तो ज़ाहिर है कि जो है नज़्मों में भी ज़ाहिर-सी बात है जदीदियत ही हमें नज़र आती है, जिस तरह के अल्फ़ाज़ का जी, जी, जी। इंतख़ाब उन्होंने बिल्कुल, किया। बिल्कुल। तो दबीर भाई, मिराजी पे भी आपने काम किया है। मिराजी के बारे में ये कहा जाता है कि ज़ाहिर-सी बात है वो लाहौर में पैदा हुए और उनका असली नाम था मोहम्मद सनाउल्लाह।
जी लेकिन अक्सर में ये भी मिलता है कि मोहम्मद सनाउल्लाह डार उनका असली नाम था और कश्मीर उन नस्ल थे। जैसे कि जी जी वहां पे भी जो है बहुत से लोग उस जमाने में जो है तकसीम के पहले कश्मीर के बहुत से लोग वहां आबाद थे, बिजनेस जी के सिलसिले में या जो भी। तो आपकी पूरी एक किताब है मीराजी के हवाले से, जबकि मीराजी को पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। उनकी तनकीद तो कदरे आसान है, आसान लफ्जों में उन्होंने लिखी है। अब बहुत से नाकिदीन ने उनका ततब्बु भी किया है। जैसे मशरिक व मगरिब के नगमे है, उनकी किताब है जो नज़्मों पर यकीनी तौर पर इतनी उम्दा किताब है, नाज़रीन आप पढ़ लें तो नज़्मों का तज़किया करना यकीनन तौर पर हर बाशऊर शख्सियत सीख लेगी उसको। एक वो इस नज़्म में, माफ कीजिएगा, जी इस नज़्म में उनकी जो किताब है उसमें जो नज़्मों का तज़किया और मशरिक व मगरिब के नगमों में उन्होंने जितने भी अहम दुनिया के जो है अहम जो तख्लीक़कार है उनकी जिंदगी के हवाले पेश किए हैं। उनकी जिंदगी के मुतालिक लिखा है, उनकी शायरी के मुतालिक लिखा है। इसके अलावा जो है जो नज़में जो उनकी नज़में हैं, गज़लें बहुत कम कही हैं। कुलियात मिराजी में नज़में हैं कि बस्ती बस्ती चला मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, इस तरह की चीजें। लेकिन उनकी नज़में जातरी है, ये बड़ी टफ नज़में हैं। तो इसमें तो बहुत मश्क, बहुत वो लगता है। आपने ज़फर नवालवी भी काम किया जो है भाई, तो दबीर भाई, तो इस पे तो पहले तो ये बताएं कि वाकई वो उनका नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था या सिर्फ मोहम्मद सनाउल्लाह था। दूसरे की उनकी चीजों में जो जो एक वो मिलता है कि उनकी जो तनकीद है वो कदरे आसान है बनिस्बत जो है नज़्मों के। तो नज़्मों की तफ़हीम उनकी बड़ी मुश्किल है। तो ये जो दोहरा रवैया है मिराजी की शायरी में और जो है तनकीद में, तो इसको आपने कैसे एक जगह समेटा? इसमें आपको क्या दुश्वारियां पेश आई? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जिस अबूरी दौर में उर्दू नज़्म मुअर्रा अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी, उसी ज़माने में आज़ाद नज़्म का वजूद हुआ। तकरीबन तमाम जदीद शेरी तजर्बों की तरह उर्दू की आज़ाद नज़्म का वजूद भी अंग्रेज़ी शेर अदब के असरात का रहने मिन्नत है। डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन खालिद, जो बाद में फिर इंग्लैंड चले गए, के कहने के मुताबिक उर्दू में आज़ाद नज़्म जो है उन्होंने ही शुरू किया था। लेकिन जब उनकी नज़में छपी, उससे कब्ल जो है नूमी राशिद की नज़में छप चुकी थी। नूमी राशिद, मीरा जी, आप समझ सकते हैं कि एक ही ज़माने की पैदावार हैं। खुद मीरा जी ने अपने मुतालिक ये कहा है, एक जगह लिखा है कि अक्सरियत की नज़में अलग हैं, मेरी नज़में अलग हैं। और चूंकि ज़िंदगी का उसूल ये है कि दुनिया की हर बात हर शख्स के लिए नहीं होती, क्या बात। इसलिए यूं समझिए कि मेरी नज़में भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उन्हें समझने के अहल हैं, या फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी भी फनकार को गालिब के बेशतर अशार आज भी पर्दा ख़फ़ा में हैं। मुझे याद आता है, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, तो एक गालिब का शेर मुझे याद आ गया कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बहुत आसान शेर है, बज़ाहिर लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि भाई इसमें जो है, जो नुक्ता है वो ये कि इब्न मरियम हुआ करे कोई। भाई इब्न मरियम तो यकीनन ईसा मसीह है, लेकिन ईसा मसीह जो है इब्न मरियम है, तो पहले तो ये है कि उनका खानदान क्या है, खानदान का बैकग्राउंड क्या है, कि क्या उसके अंदर मसीही सिफात हैं कि नहीं है। अगर उसके वो इब्न मरियम तो हो सकता है, अगर मसीही सिफात नहीं है तो फिर इब्न मरियम कहलाने के लायक नहीं है। तो उसी तरह से मीरा जी को समझने के लिए भी मीरा जी की नज़मों में उतरना होगा, उससे समझना होगा, उसके बाद ही जो हम किसी तरह का काम कर सकते हैं। मीरा जी के बारे में अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि वो जिनसी तलज़्ज़ुज़ या दूसरे मामले में जो है उनको बार-बार पेश किया जाता है कि 3 गोले उनके हाथ में हुआ करते थे। लेकिन ये है कि मीरा जी के बारे में जो शख़्सी मज़ामीन मिलते हैं हमारे यहाँ, उन शख़्सी मज़ामीन का मुताला कीजिए तो आपके अंदर उलझन पैदा होती है, आपके अंदर बेज़ारी पैदा होती है। बेशतर मज़ामीन को देखिएगा तो आप बेज़ार हो जाएँगे। जिसने भी मीरा जी की नज़्म पे काम किया है या उनके नस्ब पे काम किया है, नज़्म का मामला हो, नस्ब का मामला हो, ये मज़ामीन मीरा जी के बारे में इल्म कम देते हैं और उनकी शख्सियत के बारे में सनसनी ज़्यादा फैलाते हैं। सनसनी किस तरह फैलाते हैं कि और फिर इस तरह सनसनी फैलाते हैं कि हमारे अंदर बेज़ारी पैदा हो जाए
कि भाई मीरा जी को हटाओ, ये कुछ नहीं है, सिर्फ जो है जिनसी तलज्जुज के बारे में लिखा करता है, मीरा सेन के बारे में लिखा करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये वही मीरा जी हैं जिनकी ज़ख़ीम शेरी कुलियात मौजूद है और जिसने मशरिक़ व मग़रिब के कदीम और जदीद शुरा पर तवील मज़ामीन भी लिखे। बहुत कम उम्र में इंतकाल कर गए और तवील मज़ामीन लिखे और उनकी शायरी का तर्जुमा भी किया। अब देखिए, अब अगर हम किसी दूसरे मुफ़क्किर की शायरी का तर्जुमा करते हैं, हमारे अंदर अगर वो सलाहियतें नहीं हैं। मुझे एक जुमला याद आ रहा है कि जब वो अस्पताल में थे, बिस्तर मर्ग पे थे, तो उन्होंने अख्तरुल ईमान को फ़ोन किया और अख्तरुल ईमान को बुलाया और ये कहा कि अख्तर, ये लोग मेरे कॉम्प्लेक्स को मार देना चाहते हैं, मेरे कॉम्प्लेक्शन को मार देना चाहते हैं। अब ये लफ्ज़ कॉम्प्लेक्शन कितना वसी तनाज़ुर में वो पेश कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्शन क्या है, कि उनको अगर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाएगा तो वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन के मर जाएंगे। तो आप समझिए कि कॉम्प्लेक्शन को कितने वसी तनाज़ुर में वो अख्तरुल ईमान के सामने पेश कर रहे हैं। उसी तरह से मीरा जी के तराजुम निगार खाना जैसी किताब भी मौजूद है, जिसने मासिर उर्दू शोरा की आखिरी सांस तक पढ़ने लिखने से ताल्लुक कायम किए हुए किताब नजर आती है। मीरा जी की शख्सियत पर लिखी गई तहरीरों में कई बातें मुश्तरक भी पाई जाती हैं। वो मुश्तरक बातें ये हैं कि अहम तरीन बात ये है कि मीरा जी के जिस्म पर गुफ्तगू होगी, उनके लिबास पर गुफ्तगू होगी, उनके अखलाक पर गुफ्तगू होगी, उनके किरदार पर गुफ्तगू होगी। तो इससे ये पता चलता है कि भाई हम एक शायर पे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, एक अदीब पे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जो हमें भाई एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी कुछ हो सकती है, लेकिन उसका कारनामा क्या रहा है, उसने अदब में कौन-कौन से कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं, हमें उस कारनामे पे गुफ्तगू करनी चाहिए। इसलिए कि मीरा जी के यहाँ जो लोग जिस्म के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मेरा ख्याल है कि मीरा जी के यहाँ जिस्म को एक इस्तारा तस्वुर करते हुए उसे इंसानी तजुर्बात और तस्वुरात का माखज़ तस्वुर किया जाना चाहिए। जी, जी, जी। अगर ऐसा होता है तो हम मीरा जी के साथ इंसाफ करते हैं, लेकिन ये बातें बहुत कम हमारे यहाँ मिलती हैं, बहुत कम बातें मिलती हैं। इसलिए कि मीरा जी के बारे में खुद एक शाहिद देहलवी साहब हैं, उन्होंने उनकी शायरी को अजूबा कहा है। और मंटू ने तो मीरा जी की शायरी को गरे सरे पत्तों की मानंद कह दिया है। अनीस नागी ने उनको एक भटका हुआ शायर भी कह दिया है। तो ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि भाई जिस तरह हम गालिब को उसके ज़माने में नहीं समझ रहे थे, आज गालिब की नई सिरे से बाजियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है। फिर मैं मीरा जी की तरफ लौटता हूँ कि मीरा जी की ज़ात और तख्लीक़ात पर उनके अहबाब या तरक्की पसंदों ने जिस तरह से तंज़ किया है या तनक़ीद के नश्र चलाए हैं, लेकिन मीरा जी ने तंज़ नहीं किया, उसका जवाब पलट कर नहीं दिया, बल्कि खामोशी के साथ, निहायत ईमानदारी के साथ उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की है, अलबत्ते उनकी तनक़ीद में इसके जवाब मिल जाया करते हैं। वो कब तक खामोश रहते, उनको जवाब मिल जाया करता है कि लोग उनके लिबास और हुलिये पर तंज़ कर रहे हैं, ये कौन सी बात होती है। लिहाजा ये तमाम बातें जो हैं, या फिर जो है मीरा जी के बारे में समझने के लिए ज़ाहिर है कि हमें चंद वाक़या को देखना होगा। जैसे आपने कहा कि सनाउल्लाह डार की बात कर रहे थे आप, उनका नाम तो मोहम्मद सनाउल्लाह था, लेकिन सनाउल्लाह डार के नाम से भी पहचाने गए। हुआ ये कि एक वाक़या ये रूनुमा हुआ कि जब वो मैट्रिक के इम्तिहान तालिब इल्म थे, इस वाक़ये को पूरी तरह समझने के लिए इससे पहले कि चंद वाक़यात और हक़ायक़ पर से पर्दा उठाएँ हम, ज़रूरी ये होता है कि हमें देखना चाहिए कि मीरा जी की पैदाइश 25 मई 1912 में लाहौर में हुई। उनके वालिद साहब रेलवे मुलाज़िम थे, लेकिन इनके आबा-ओ-अजदाद जो है यकीनन उनका ताल्लुक़ कश्मीर से था। अब कश्मीर से जो उनका ताल्लुक था, खुद शाफ़ी किदवाई साहब ने अपनी एक मोनोग्राफ में लिखा है, एक जगह लिखा है कि मीरा जी आर्याई नस्ल कश्मीरी पंडित थे। शाफ़ी किदवाई साहब लिखते हैं और डोगरा दौरे हुकूमत में उनके परदादा के वालिद फाजिल डार जो है अपने ख़ानदान के अफ़राद के साथ कश्मीर से नक़ल मकानी करके गुजरनवाला के गाँव अटारा में आकर आबाद हो गए। उनके दादा परदादा यकीनन वहाँ के रहने वाले थे, कश्मीरी पंडित थे। लेकिन अक्सर व बेशतर ये होता है कि हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जब जहाँ मुंतकिल होते हैं, नक़ल मकानी करते हैं या नई बातों को तलाश करने की कोशिश करते हैं या नौकरी के सिलसिले में जाते हैं, तो नक़ल मकानी हमारे ऊपर जो है नागुज़र हो जाया करती है। उनके साथ भी यही मामला हुआ और मीरा जी के साथ
جو میرا جی پھر ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی. اب ان کے والد چونکہ ریلوے میں ملازم تھے تو دھیرے دھیرے جو ہے مختلف علاقوں میں وہ گھومتے رہے. لیکن ان کے اندر یقیناً ایک ایسا شاعر تھا, ایک ایسا ادیب تھا جو یہاں اس طرح کی گفتگو جو ہے بہت ممکن ہے کہ بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکے, لیکن یقیناً جو ہے میرا جی ایک ایسے شخص کا نام ہے, ایک ایسے شاعر کا نام ہے کہ جس نے حلقہ ارباب ذوق کے پیش نظر ایک تحریک کے سلسلے میں جس طرح سے پہچانے جاتے ہیں, چاہے نعوم راشد ہوں یا میرا جی ہوں, اگر ان دونوں کو مائنس کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک شخص جو ایک رجحان کی حیثیت سے یا ایک تحریک کی حیثیت سے اپنی جامع شناخت بنا رہا ہے, یقیناً جو ہے اس شخص کو ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ ایک ایسے دور میں آزاد نظم میں شاعری کر رہا ہے جب اس کی ابتدا ہو رہی ہے, اور جب ابتدا کہیں اور ہوتی ہے, لیکن نعوم راشد کے ساتھ بیٹھ کر یا خود میرا جی جو ہے جس طرح سے آزاد نظمیں کہہ رہے ہیں, یقیناً جو ہے ان کی صلاحیت پہ دال ہے. جی بالکل بالکل دبیر بھائی. اب ناظرین میں ایک دو واقعات جو دبیر بھائی نے بتایا, میں ایک دو واقعات آپ کو بتا دوں کہ میرا جی بڑے پڑھاکو تھے. ان کے لائبریرین کا قول ہے, ان کا لائبریرین کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے پڑھاکو دیکھے نہیں, لیکن یہ جو لمبے بالوں والا لڑکا جس طرح مطالعے میں غرق رہتا ہے اس طرح میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اور جو کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ یا جو لوگ واقعی اپنے جو ہے اندر تعلیم کو جذب کر لیتے ہیں, ان کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ دے خیال انہوں نے پرچہ نکالنے کا سوچا تھا لیکن خیال نہیں نکل سکا. اختر ایمان صاحب کے گھر میں ان کا انتقال ہوا, ان کے جنازے میں صرف 4 لوگ تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے یہ شاہد دہلوی صاحب کا ذکر کا کہ میں نے پڑھا تھا کسی کے بارے میں کہ ان کے بارے میں جو ان کا کی سنسنی خیزی بہت پھیلائی گئی, تو ایک جملہ تھا ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ میرا جی اتنے گندی شخصیت تھے, اتنے گندے رہتے تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا نہلائے دائی یا نہلائے 4 بھائی, یعنی یا تو پیدائش میں جو ہے آپ سمجھ لیجئے. لیکن سوچئے کیا ایسا ممکن نہیں ہے, یا میراسین کا تذکرہ انہوں نے کیا. تو اب حلقہ ارباب ذوق کا ذکر صلاح الدین احمد صاحب ادبی دنیا والے, اگر انہوں نے تھوڑا سا کام کیا ظاہر سی بات ہے, لیکن اس کے بعد یقینی طور پر جو تجزیاتی جو داغبل ڈالی وہ میرا جی نے ڈالی. حلقہ ارباب ذوق میں میرا جی کو ہٹا دیے کچھ نہیں بچتا. اس نظم میں باقاعدہ انہوں نے لکھ کر کے دکھائے کہ نظم کا تجزیہ کس طرح ہوتا ہے. تو بہرحال دبیر صاحب نے بہت عمدہ کتاب لکھی ہے, ناظرین آپ بالکل پڑھیں. دبیر بھائی اسی طرح جیسا آپ نے مذہبیات امام ابو حنیفہ پہ آپ نے قلم اٹھایا, تو میں اس بارے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ امام ابو حنیفہ صاحب پہ تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, تو آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ امام ابو حنیفہ صاحب نے آپ کو لگا کہ یہ گوشہ تشنا ہے یا مجھے اس پر لکھنا چاہیے, یا اس چیز کو اگنور کیا گیا, یا کیا وجوہات تھی, کیونکہ عام طور پہ ایسی شخصیتیں اس طرح تو نہیں لکھتی. جی دیکھیے ایک بہت مشہور قول ہے کہ ایسا شخص جو محبت میں غلو کرتا ہے یا بغض میں انتہا کو پہنچتا ہے اس کی منزل ہلاکت ہے. اگر محبت میں غلو کرتے ہیں تو بھی, یا بغض میں انتہا کرتے ہیں تو اس کی منزل جو ہے صرف ہلاکت ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کی تاریخ بہت سے علمی معجزات پر مشتمل ہے. اسلامی فقہ کی تشکیل میں بہت سے اکابر, مجتہدین اور ائمہ کا حصہ رہا ہے. ان میں بعض اب تو بالکل گمنامی کی زندگی گمنام ہو چکے ہیں, یا بعض کے اسماء گرامی صرف طبقہ علماء میں متعارف ہیں. عالموں کے یہاں جو نام ملیں گے, ہمارا گھر جو سے خالی خالی نظر آتا ہے, ہمارے بچے ان ناموں کو جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن اپنے وقت کے بہت اہم مستحب تھے. ان کے حلقہ درس میں اطراف و اخناف عالم سے لوگ آتے, اذان و تلمس کو طے کرتے, ادب سیکھتے, تہذیب سیکھتے. بعد میں مسند امامت پر جلوہ فرما ہوئے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. مسائل پیدا بھی ہوئے, اس کے حل بھی کیے گئے. بالخصوص 4 ہستیاں, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, یہ 4 ایسے امام ہیں جنہیں ہمارے بچوں کو, ہماری نسل کو جاننا چاہیے, پہچاننا چاہیے. ہم مسلمان ہیں. ایک ادیب کو صرف تنقید کے حوالے سے یا لسانیات کے حوالے سے یا فیشن کے حوالے سے نہیں پہچانا جاتا ہے,
بلکہ اس کی نظر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب پر بھی ہونی چاہیے. تو ایسی شخصیتیں ہیں، یہ چاروں شخصیتیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، کہ جن کی فقہ مشرق و مغرب اور جنوب و شمال اس طرح رواج پا گئی ہیں کہ آج عالم اسلام اس کی تقلید کر رہا ہے، کرنا بھی چاہیے. ان آئمہ اربع میں جہاں تک امام ابو حنیفہ کا تعلق ہے، میں تین پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے. امام ابو حنیفہ کا تعلق ہے تو اپنے زمانے میں تفقہ شان اجتہاد اور ملکہ تخریج و تفریح میں سب سے یگانہ اور ممتاز تھے. مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت آج انہی کی پیروی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. امام ابو حنیفہ اپنے وقت سے لے کر آج تک 1200 سال ہو گئے، مدت گزر چکی ہے، آج بھی مرکز مدح ثنا ہے. ان کی فقہ، اصول، گہرائی، لچک، وسعت کے اعتبار سے الدین و یسر کی صحیح تعبیر محسوس کی جا سکتی ہے. اور یہ ان کا اتنا اہم فکری اور علمی کارنامہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہوں گے، ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہوں گے کہ دنیا اسلام کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکے گی. کثرت سے جو روایت ملتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی اور ان کا انتقال 150 ہجری میں ہوا. امام صاحب کے والد ثابت بن زوتی فارسی تھے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیے امام صاحب کے متعلق جو ہے کہ میں نے اس لیے ان پہ کام کیا کہ ہمیں مذہب کے متعلق بھی جاننا چاہیے کہ ہم جس امام کی پیروی کر رہے ہیں اگر انہیں ہم نہیں جانیں گے تو یہ کام ہم سے جو ہے اچھی طرح سے نہیں ہو پائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خشوع و خضوع اور باوضو ہو کر کے جو ہے کسی شخصیت کی تحریروں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے ذہن و دل کو منور کر سکے. امام ابو حنیفہ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ خود لکھا ہے کہ میں نے علم فقہ پہ کیوں غور کیا. بہت سارے علم پہ انہوں نے غور کیا، انہوں نے جو ہے وہ فقہ کی طرف بھی مائل ہوئے، کبھی جو ہے کہتے ہیں کہ میں دوسرے بھی علم کی طرف رجوع کرتا رہا، لیکن علم فقہ کی طرف کیوں مائل ہوا. تو میں ان کا اقتباس اپنے ناظرین کے حوالے کرنا چاہوں گا. وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ پھر علم فقہ پر غور کیا، حقیقت یہ ہے کہ جس قدر زیادہ غور و فکر کرتا اس علم کی عظمت اور جلالت شان میرے دل میں بڑھتی جاتی. اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. میں خیال کرتا کہ اس علم کی تحصیل کے لیے علماء، فقہا، مشائخ وقت اور صاحب نظر بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کے اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے. دیکھیے یہاں اخلاق کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جن کا اخلاق بلند ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ اخلاق پہ بات کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ فرائض کی ادائیگی، اقامت دین اور عبادت گزاری اس علم کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں. مزید لکھتے ہیں کہ اس سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو سکتی ہیں. جو شخص اس سے دنیا کمانا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اس میں رفعت اور بلندی حاصل کر سکتا ہے، اور جو شخص عبادت الہی یا خلوت نشینی کا ارادہ کرے تو عبادت الہی بغیر علم کے ممکن نہیں. عبادت الہی بغیر علم کے ممکن نہیں، اور وہ علم فقہ ہے جو علم بعمل کا نام ہے. دیکھیے علم نے بعمل کا نام دیا ہے. تو ایسے امام پہ قربان جائیے کہ انہوں نے دیکھیے اب ہمارے سامنے جو ہے اب نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب صحابہ کرام کا بھی دروازہ بن چکا، اب تبع تابعین بھی اب نہیں رہے، اب اس کے بعد تبع تابعین کے بعد جو ہے بزرگوں کا دورہ ہے. تو اب ہمیں جو ہے اس دور میں اگر کوئی ایسا مستند شخص مل رہا ہے جس کی پیروی ہم پہ ناگزیر ہے، جن کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ہے چاروں ائمہ، امام حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں،
ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے. یہی وجہ ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ پہ کام کیا اور دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہوئے اپنی بات جو ہے کچھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ صاحب میری گفتگو کا موضوع بنتے رہے. جی جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نیا نقطہ دبیر بھائی نے دیا کہ بھائی واقعی ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں، یہی بات میں اکثر فیس بک پہ لکھ رہتا ہوں قرآن کے تعلق سے، کہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے قرآن میں لکھا کیا ہے، یعنی ان کا ترجمہ پڑھنا بہت بالکل ضروری ہے. میں اکثر لکھتا رہتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ضروری ہے. اچھا دبیر بھائی، بیچ میں جو ہے الحمدللہ صغیر افراہیم صاحب کا تذکرہ آیا تھا فکشن کے حوالے سے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ عبد الغفور نساق پہ جو سیمینار، ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ جو ٹیم ہے پوری، جس میں دبیر صاحب ہیں اور بھی دوسرے اراکین ہیں، چانسلر صاحب دوسرے لوگ ہیں جو کہ بڑے جو ہے قیادت جن کے ہاتھ میں ہے، اور لوگ جو سیکریٹری صاحبہ ہیں، تو جو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی بڑا کام کر رہی ہے، بڑے بڑے سیمینار بہت اچھا کام کر رہی ہے، روح ادب بہت معیاری نکل رہا ہے. تو یہ پوری ٹیم کا معاملہ ہے. تو عبد الغفور نساق پہ سیمینار ہوا تھا، اس میں جو ہے صغیر بھائی نے کچھ تذکرہ کیا تھا کہ یہ مانوی شاگرد تھے. آپ کو جو ہے یاد ہوگا دبیر بھائی. اس کے علاوہ جو ہے ابھی صغیر صاحب کی گفتگو فکشن کی ماہر پریم چندیات کے حوالے سے، تو میں نے ابھی ان کا کچھ دن پہلے انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے جو ہے اقبال کے غالب کے بارے میں گفتگو کی تھی. غالب پہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں. تو ان کا جو کینوٹ ایڈریس تھا جو ہے اس میں میں بھی شامل تھا. اس میں انہوں نے یہ گفتگو کی تھی کہ جو ہے سر سید سے بھی غالب کو ملاقات ہوئی، جو ہے اس کا بھی جو مرکز کلکتہ ہی رہا، جو ہے یہ الہلال یا البلاغ جو بھی جو ہے ان کا بھی بڑا جو ہے ان کا رہا، جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، معاف کیجیے گا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا بھی جو ہے جو کاوشیں رہیں اس کا بھی پورا میدان کلکتہ رہا. تو یہ جو نئی دریافتیں ہیں، جیسے صغیر صاحب نے کی دریافتیں، یہ جو نئی دریافتیں میں ان کو کہوں گا، تو اس اکیڈمی جو ہے اس پہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں. تو اس کو جو نئی دریافتیں ہوئی، اس کو کہیں یکجا کرنے کا بھی کوئی جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس کو پبلش کرنے کا یا اس کو اکٹھا کرنے کا، اس پہ کام کرنے کا بھی کچھ جو ہے اکیڈمی کو سوچ رہے اس طرح کرنے کے لیے؟ دیکھیے، مغرب بنگال اردو اکیڈمی کے سلسلے میں کچھ لوگ فیس بک پہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ وہ 4-5 افراد پر مشتمل جو ہے ایک ٹیم ان کی بنی ہوئی ہے. اور نسیم عزیزی صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے اپنے ایک اس میں لکھا بھی تھا کہ یہ لوگ دراصل جو کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کرسی انہیں ابھی تک کے نہیں مل سکی ہے. اللہ جو ہے ان کی دعاؤں کو قبول کرے. بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ میں بار بار اپنی گفتگو میں یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے خوش اسلوبی کا مظاہرہ کیجیے، اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، نیک نیتی کا مظاہرہ کیجیے. اگر آپ کے اندر نیک نیتی نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، انسیت نہیں ہے، اخوت نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ تو ہمارا پیغام ہے. تو میں پہلے یہ بتاؤں آپ کے سامنے کہ اردو اکیڈمی کیا کیا کر رہی ہے، اس کے بعد پھر میں آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے کہ جو ہمارے یہاں سیمینار ہو رہے ہیں، ان سیمینار میں پیش کیے گئے مقالوں کا کیا حشر ہوگا، کیا ہونے والا ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک کے جو ہے 158 ٹائٹلز جو ہے اردو اکیڈمی نے شائع کر چکی ہے. یہ کتابیں شائع ہو گئی ہیں. ڈیجیٹائزیشن جو ہمارے یہاں ریئر بکس ہے، اس کو ہم نے اس کو جو ہے اس کو جو نیٹ کے حوالے سے جو دور بیٹھے جو لوگ ہیں، جو اکیڈمی نہیں پہنچ پاتے ہیں، جو بچے نہیں آ پاتے ہیں، یا ابھی جو پینڈیمک سچویشن ہے اس کے پیش نظر جو ہے نیٹ پہ تمام کتابیں دستیاب ہیں. جو کتابیں انقا ہیں، جو کمیاب ہیں، اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے کام کیا ہے. ہمارے یہاں موبائل لائبریری وین ہے، مختلف علاقوں میں جاتی ہے وین، اور وہاں جو اردو کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں اس کو پیاس بجھاتے ہیں. ہم لوگوں نے انٹرنیشنل سیمینار کیے. ابھی آپ غالب کی بات کر رہے تھے، غالب پہ جو ہے اردو اکیڈمی نے انٹرنیشنل سیمینار کیا ہے. اس سے قبل جو ہے انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا جس میں الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر یوسف عامر صاحب تشریف لائے تھے. مصر سے کئی خاتون آئی تھیں، ایران سے ایک خاتون آئی تھیں، اور کلکتے کے بھی چند افراد تھے، دہلی کے بھی چند افراد تھے. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں آ کر کے اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے یا انہوں نے پیش کیا ہے. اس کے بعد عالیہ یونیورسٹی کی بات کچھ دیر پہلے میں نے اپنے گفتگو میں کی ہے. آج سے
6-7 साल पहले की बात है। आलिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू का क़याम कैसे हुआ, मैं इसके बारे में भी बताता चलूँ कि उर्दू एकेडमी ने जश्न इक़बाल मनाया था। उस जश्न इक़बाल के मौका पे मग़रिब बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी आई हुई थी और इक़बाल के पोते वलीद इक़बाल तशरीफ़ लाए थे। उस दौरान जो है उस दौरान क्या हुआ कि अचानक जो है बात उर्दू की निकल आई, आलिया की निकल आई। हमारे वज़ीर आला ने कहा कि आलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर इक़बाल चेयर का क़याम अमल में आएगा। सुल्तान साहब मरहूम मौजूद थे। उन्होंने जाकर ममता बनर्जी को कान में कहा कि वहाँ तो उर्दू का शोबा ही नहीं है, तो इक़बाल चेयर कैसे कायम होगा? उस वक़्त उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर साहब कहाँ हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहाँ है? और कहा कि आप वहाँ उर्दू का क़याम अमल में लाइए। तो वहाँ उर्दू का क़याम अमल में आया। तो इस तरह से अगर उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम नहीं होता, जश्न इक़बाल नहीं होता, तो शायद आलिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम नहीं होता। तो ये भी जो है उर्दू एकेडमी के हिस्से में ही जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है हम यहाँ अदीबों को, शायरों को, सहाफ़ियों को होता है। जश्न बहार मुशायरा किया गया, इंटरनेशनल मुशायरा था जिसमें जापान से और मिस्र से और अरब से और दूसरे ममालिक से शुरा भी आए थे। सेमिनार उर्दू एकेडमी हमेशा करती रहती है, आप भी उसके गवाह हैं, सगीर फ़हीम साहब भी गवाह हैं और दीगर अफ़राद जो हमारे नाज़रीन हैं, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो सेमिनार में हमारे आ चुके हैं। यहाँ सेमिनार अक्सर व बेशतर हुआ करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है मुख्तलिफ कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को, मैं तो समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की वाहिद उर्दू एकेडमी है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सेमिनार के लिए फंडिंग करती है। देखिए एनसीपीएल जो है वो एक अदारा है, वो एकेडमी नहीं है। ये एक वाहिद एकेडमी है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू को पैसे देती है कि आप सेमिनार कीजिए, आप उर्दू से मोहब्बत कीजिए, आप उर्दू को फ़रोग़ दीजिए। तो ये उर्दू एकेडमी हमारी कर रही है। उसके बाद रेयर बुक्स, वो किताबें जो बहुत पुरानी हो गई हैं, अब बाज़ार में दस्तयाब नहीं है। सोज़ वतन है जैसे प्रेमचंद या आब हयात है या और दीगर किताबें हैं, उर्दू एकेडमी की रीप्रिंट करवा रही है, कर रही है। हर साल उर्दू बुक फेयर हमारे यहाँ 10 रोज़ का मनाया जाता है, जिसमें मुशायरा भी होता है, मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम भी होते हैं और उस ड्रामा फेस्टिवल भी हमारा मनाया जाता है। 4 दिन का 5 दिन का ड्रामा फेस्टिवल होता है। अब ड्रामा जो है धीरे-धीरे जो है हमारे मंज़रनामे से अलग होता चला जा रहा है। उर्दू एकेडमी जो है अभी कुछ दिनों 1 साल 1.5 साल पहले की बात है कि नज़ीर आगरा बाज़ार पे जो हम लोगों ने ड्रामा किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी गालिब पे जो प्रोग्राम हमारा हुआ है, 6 रोज़ा प्रोग्राम में 6-7 ड्रामे गालिब पे ही पेश किए गए और सबसे अहम बात ये है कि गालिब को हम लोगों ने अफ़साने की शक्ल में पेश किया है। ये कोई एकेडमी नहीं कर सकी अभी तक के है। गालिब पे अफ़साने लिखवाए गए और उसको जो है गालिब जिसमें तारिक छतारी साहब आए थे, ये गज़नफ़र साहब आए थे और दूसरे लोग आए थे। उन लोगों ने आकर के जो है गालिब अफ़साने लिखे और उसको बाज़ाब्ता किताबी शक्ल में उर्दू एकेडमी पेश करना चाहती है। किताबों पे इनामात दिए जाते हैं, किताबों पे सब्सिडी भी दी जाती है। हमारे यहाँ 13 कोचिंग सेंटर चलते हैं जो क्लास 8 से लेकर 12 तक के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बच्चों की ज़हनी आबियारी करती है। WBCS वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की बात है। सिविल सर्विस में जो है हमारे कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ है। बुक ग्रांट के तौर पे माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और हाई मदरसा के बच्चों को इस बार तो 1200-1300 बच्चों को 5000 रुपए करके दिए गए। एक बच्चे को 5000 करके 1200 बच्चों को जो है उर्दू एकेडमी ने किताब के खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उर्दू एकेडमी काम कर रही है। बुक ग्रांट देती है माध्यमिक, हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए। स्कॉलरशिप क्लास 6 से लेकर के MA के बच्चों तक को जो है सालाना स्कॉलरशिप उर्दू एकेडमी देती है। यहाँ तक कि उर्दू, बंगाली, अरबी का कंप्यूटर ट्रेनिंग भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे यहाँ से कई सिविल सर्वेंट भी निकल चुके हैं, ऑडिटर, अकाउंट ऑफिसर पैदा हो चुके हैं। हमारे यहाँ से LDC, हमारे यहाँ से LDA, PA, AO, ATO, अकाउंट्स ऑफिसर, बहुत सारे बच्चे जो है कामयाब होकर यहाँ से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 78 बच्चे IT सेक्टर में जो है यहाँ से कंप्यूटर सीख करके वहाँ काम कर रहे हैं।
छोटा सा काम है जो आपके सामने पेश कर रहे थे। जहाँ तक इस सेमिनार का ताल्लुक है, तो अभी तक के जितने भी सेमिनार हुए हैं, कई किताबें जो हैं बाज़ाब्ता आ चुकी हैं, हमारी छप चुकी हैं। उसका इजरा भी हमने लॉकडाउन में करवा लिया है। नसीम अजीज़ी साहब यहाँ गवाह हैं, हकीकत जो है फ़ज़ाना यहाँ मौजूद हैं, और भी बहुत सारे लोग जो जानते हैं। अभी जो है जमील मज़हरी पे जो किताब शाये हुई थी, उस किताब को जो एजाज़ अली अरशद साहब के हाथों से उसका इजरा करवाया गया, ऑनलाइन इजरा हमने करवाया है, इसलिए कि एजाज़ अली अरशद साहब जमील मज़हरी के शागिर्द भी हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे हमारी उर्दू अकेडमी न सिर्फ़ बंगाल तक ही महदूद है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में फैल चुकी है, और सारे हिंदुस्तान के उदबा, शोरा को यहाँ बुलाती है, उन्हें निहायत एहतराम के साथ उसे ठहराती है, उसे जो है सेमिनार में मौका पेश करवाती है, ताकि किसी भी तरह से जो है ये उर्दू की हम खिदमत कर सकें। यही वजह है कि मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि इस बात पर मेरा ईमान है कि ऐसे अदीबों को बुलाना जिनको देखने के बाद ये समझ में आए कि मैं अदब सीख रहा हूँ, मैं तहज़ीब सीख रहा हूँ, मैं सकाफ़त सीख रहा हूँ, ऐसे उदबा में यकीनन जो है ऐसे लोगों का नाम लिया जा सकता है। मेरी मुराद शमीम हनफी साहब हैं, शाफ़ी किदवाई साहब हैं, अबुल कलाम काज़मी साहब हैं, सगीर अफ़राहिम साहब हैं, कुद्दूस जावेद साहब हैं, अतीकुल्लाह साहब हैं, अनवर पाशा साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अभी चूँकि अब एक फ़हरिस्त हमारे सामने मौजूद है, ज़ाहिर है फ़हरिस्त को लेकर के जो है आपका वक़्त बर्बाद करना नहीं चाहता। तो सारे हिंदुस्तान से, वो बैग एहसास साहब हैदराबाद से हैं, तो बहुत सारे लोगों को उर्दू अकेडमी बुलाती है, और उनकी ज़बान से, अदब के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमाती है, यहाँ के लोगों को ऐसे अदीबों से मुतारिफ़ कराती है, उन लोगों को दिखाती है कि जी देखिए हम किस काम कर रहे हैं। यानी उर्दू अकेडमी काम करने पर ईमान रखती है, यकीन रखती है। उर्दू अकेडमी हरगिज़ इस बात पे यकीन नहीं करती कि हम सिर्फ़ जो है बैठ कर के जो है फ़ज़ूल में बातें करें। लेकिन बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ बात कर रहे हैं, वो आप फ़ेसबुक उसे देख रहे हैं, वो 4-5 आदमी से ज़्यादा जो है कुछ उनके यहाँ उससे छठा 7वां आदमी को नहीं आता है। तो यानी मैं तो अक्सर और बेशतर ये कहता हूँ कि भाई हमेशा बुग़्ज़-ए मुआविया में गुफ्तगू नहीं होती, कभी-कभी हुब्ब-ए अली में गुफ्तगू कर लिया कीजिए। अगर आप हुब्ब-ए अली में गुफ्तगू करेंगे, जी तो यकीनन जो है आपको काम नज़र आएगा। मैं एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग जो है वो हवा में परवाज़ कर रहे थे। जब वो घर पहुँचे तो बेगम ने कहा कि आप बुज़ुर्ग बनते हैं? मैंने कहा एक बुज़ुर्ग को देखा है, वो हवा में परवाज़ कर रहे थे। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि बेगम मैं ही था। अचानक बेगम साहबा फरमाने लगी, क्या अच्छा बात इसलिए कुछ आप कर थे आप, तेरे में चल रहे थे आप। तो देखिए कभी भी जो है बीवी तस्लीम नहीं करती कि उनके शौहर जिस तरह से काम कर रहे हैं, उर्दू अकेडमी मग़रिब बंगाल जी का जी मामला कुछ लोगों के दरमियान यही हो चुका है कि जो भी काम उर्दू अकेडमी कर रही है, उनको सिर्फ़ बुराई ही बुराई नज़र आती है, खराबी ही खराबी नज़र आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बुग़्ज़-ए मुआविया में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, कभी-कभी कभी-कभी हुब्ब-ए अली में भी गुफ्तगू करनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल नाज़रीन मैं आपको बता दूँ यकीनी तौर पर दबीर साहब खुद हमारे जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू प्रोफ़ेसर आफ़ताब अहमद आफ़ाकी सर भी जा चुके हैं, उनको भी ये एज़ाज़ हासिल है कि वो गए हैं, उन्होंने अपने जो है सेमिनार में इंटरनेशनल सेमिनार में हिस्सा लिया है। तो इतनी बातें जो है दबीर भाई ये तो हुई तख्लीकी आपने तनकीदी बसीरतों के हवाले से, लेकिन बहसीयत शायर के अभी गुफ्तगू बाकी है। तो आपकी नज़्म चूँकि मैंने अभी ही ताज़ा शुमारा जो 50वां हमारा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने लगाई है। तो अब गुलदस्ता-ए ग़ज़ल एक जो है किताब भी है आपकी तो ग़ज़ल या नज़्म के ताल्लुक से भी हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर है कि आप कुछ सुनाएँ अपनी भी चीज़ें ताकि जो है ये भी गोशा जो है तिश्ना ना रह जाए। जी। अभी 2 नज़्म मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहूँगा कि बिल्कुल हालात हाज़ा के पेश नज़र जो है 2 नज़्म तख्लीक हुई है। जी, जी। एक मिनट बस। जी। जी, एक नज़्म है, नया दामाद लाने वाली हूँ। जी। जी, जी, जी। मेरी ख़्वाहिश का तुझको पास न था, तूने अपनी रज़ा से क्या इसको चुना।
उसने हर लम्हा मुझको रंज दिया और जीना मेरा हराम किया। क्या बात। उसकी अफ़कार में खबासत थी, हर बुराई की एक इबादत थी, दौलत जिस्म उसकी चाहत थी, उसकी फितरत ही में रज़ालत थी। नाक उसने कर रखा था दम, मैं भला उससे कुछ कहाँ थी कम। मुझ पे तोड़े जो उसने ढेरों सितम, मैंने कितनों पे की निगाहे करम। हवसे जाम की अजब है प्यास, रोज़ कहानी बदन की आस, किस कदम मुझको आ रही है रास, मैंने बदले है जाने कितने लिबास। मेरी नज़रों में वही बेहतर, मेरी नज़रों में है वही बेहतर, जिसे देखा करूँ मैं जी भर कर। हो वह दानिश्वर एक दानिश्वर, जिसकी आगोश में रहूं अक्सर। माँ तुझे कुछ बताने वाली हूँ, पर्दा राज उठाने वाली हूँ, फिर सब घर बसाने वाली हूँ, नया दामाद लाने वाली हूँ। ये एक क्या नज्म है। बात है। और दूसरी नज्म में जो है उसका उन्वान है चेहरा। आंखों में ख्वाब लिए, गुल के ताकों में अक्सर, खा वो कोई सूरत हो उसको हासिल करना था। मंसूबे कैसे कैसे, तदबीरें कैसी कैसी, जान और दिल को आखिरकार राहत की सौगात मिली। रफ्ता रफ्ता वो चेहरा फूल की आंखों में खटका, एक गुरु बनकर कैसे सामने उसके पहुंचा था। आप अक्सर देख रहे हैं कि गुरु क्या कर रहे हैं आजकल। रफ्ता रफ्ता वो चेहरा फूल की आंखों में खटका, एक गुरु बनकर कैसे सामने उसके पहुंचा था, जिसके अंदर जाने कितने जिंदा थे शैतानी चेहरे। गुल को पीछा छुड़ाना था, खुद को भी बचाना था। अब फसूदा चेहरा होटल में डाले डेरा, भूल कर अपनी सियाह माजी, झटक के सारी बदनामी, नई उमंगे दिल में लिए, अज़्म जवां यकजा करके, रोज शब फिर नई नई ढूंढा करे है कोई कली। ये दो नज्म अपने नाज़रीन के लिए। जी, जी। ये अब देखा जो ज़माने का तेवर बदल रहा है, जो खुद मुख्तारी की बात आ रही है, औरतों में भी जो चीज़ें निस्वानियत की जो फ़िज़ा बदल रही है, उस पे दबीर भाई ने कितनी अच्छी गुफ्तगू की। दबीर भाई अभी जो है इरफ़ान आरिफ़ साहब का वो था कि जो हमारा उन्वान है क्लासिक और जदीदियत के ताल्लुक से, तो उसमें कुछ बातें रह गई, तो मैं उस पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि देखिए कोई शेर है, जैसे क्लासिक कहते हैं, जैसे कि एक ज़मानवी एक बोध है, ज़मानवी की भाई पहले जो है गालिब का दौर आप ले लीजिए या मीर का दौर ले लीजिए, उसके बाद का कुछ दौर ले लीजिए, उसके बाद फिर जदीदियत क्लासिकियत के बाद का दौर, इस तरह की बातें हैं। तो मतलब ये भी तो होता है ना कि जैसे कि कोई बहुत पुराना शेर है, क्लासिक है, वो जदीद के तौर में भी दाखिल हो जाए, अगर उन्वान हटा दीजिए। मिसाल के तौर पर मीर के बहुत से शेर रख सकते हैं कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर ये खून भी आएगा तो आंखों से, एक सैले जी, बाहर निकलेगा। ये शेर मीर का, लेकिन आप हटा दीजिए तो कहेंगे कि यार ये पता नहीं किसका है। दूसरी बात ये जदीद किसी शायर का, इसी तरह जदीद जो मतलब एक जमानवी एतबार, ये 60 के बाद जो पैदा हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि क्लासिकी उसके अशार हैं। इरफान सिद्दीकी से तो खुद कहे कि लिखवाई गए कि यार आप जो है उस तरह की क्लासिकी शायरी कीजिए। तो ये क्लासिक और जदीदियत मतलब एक नजदीक मतलब इसको किस पैरामीटर में, किस उन्वान के तहत हम कह सकते हैं कोई जमानी इसका एतबार है, या कुछ इसके अलग अलग जो है उसलूबियात है, कुछ अनासिर हैं जिससे कहे आप की नजर में कि ये क्लासिक चीज है, ये जदीदियत है। देखिए क्लासिक के बारे में तो हर कोई जान रहा है कि किस तरह से जो है हमारे यहाँ जो शायरी हो रही थी, या वो कुली कुतुब शाह से लेकर के गालिब तक के। गालिब जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लासिकी और जदीद के दरमियान जो है कुल की हैसियत रखते हैं। गालिब के यहाँ जो है जदीद शायरी भी है, गालिब के यहाँ जो है वो क्लासिकी शायरी भी है। क्लासिकी शायरी में बिलखसूस जो है महबूब के लबो रुखसार की बातें, उसकी गैसों की बातें, उसके हुस्न अदा की बातें वगैरह हुआ करती हैं। और बहुत दिनों तक के ये बातें भी हमारे सामने आ रही थी कि भाई गज़ल के मानी भी यही है कि हम महबूब से हम कलाम होते हैं। लेकिन गालिब के यहाँ देखिए कि गालिब के यहाँ उसकी गज़ल का पहला शेर है कि नक्श फरियादी किसकी शौक ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन तय करे तस्वीर का, कहाँ महबूब है। या इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख के दवा करे कोई। या फिर गालिब के यहाँ जो शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इस तरह से क्या है कि गालिब के यहाँ जो है वो बिल्कुल माने बदल गया है। अब माने बदलने लगे हैं कि जो क्लासिकी शायरी में महबूब से बातें कर रहे थे, भाई क्लासिकी शायरी का बहुत मशहूर वाक़या है कि एक शख्स जो अपने महबूब से मिलने के लिए जाता है, उसका महबूब जो है छत पे सो रहा है, एक रस्सी लटक रही है, उसके सहारे से छत पे पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो उसे एहसास हुआ भाई वो तो रस्सी नहीं थी, वो तो साँप था। ये तो क्लासिकी का मामला है।
لیکن جدید شاعری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جدید شاعری میں بالکل جس طرح سے اگر ہم غالب کی بات کر رہے ہیں تو بالکل وہ عام انسانوں کے مسائل کو پیش کر رہا ہے. فیض کے یہاں جو باتیں پائی جاتی ہیں یا اقبال کے یہاں جو باتیں پائی جا رہی ہیں ہے نا, یا دوسرے حسن نعیم کے یہاں جو باتیں پائی جا رہی ہیں, مشتاق صاحب کے جو باتیں پائی جا رہی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل وہ فرق آ گیا ہے کہ اب ہم جو ہے بالکل وہ پرانی چیزوں کو جو ہے نہایت ہمیں وہ 3 اقتباسات یاد آ رہے ہیں کہ عظمت اللہ خان نے کہا تھا کہ غزل کی قدر مار دینی چاہیے. حال ہی کیا پایا جاتا ہے کہ بھئی غزل سے سنڈاس کی بو آتی ہے. کلیم الدین احمد نے تو بہت بڑی جملہ کہہ دیا کہ غزل نیم وحشت کی شاعری ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان تینوں اقتباسات پہ نظر انصاف سے اگر آپ فکر کرنے کی کوشش کریں, غور کرنے کی کوشش کریں, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ میر اور غالب کے بعد کلاسیکی شاعری میں کیا پیدا کریں گے؟ میر تو بھائی آپ نے شہنشاہ تغزل کہہ دیا, غالب کو آپ نے اردو شاعری کا سرتاج کہہ دیا, تو اور میر اور غالب کے بعد آپ کی گفتگو غزل کے حوالے سے کہاں جا سکتی ہے؟ میں اپنے بچوں کو یہ بتاتا ہوں کلاس روم میں کہ بھائی دیکھو, بعض لوگ ایسے ہیں جو 40 سال سے شاعری کر رہے ہیں, 50 سال سے شاعری کر رہے ہیں, ایک بھی شعر میر کی طرح نہیں کہہ پاتے. تو اگر یہ خاطر آپ کے ذہن میں رہے, ہمارے ذہن میں رہے, تو عظمت اللہ خان کا یہ جملہ کہ غزل کی قدر مار دینی چاہیے, کوئی غلط تو نہیں کہا تھا. یا غزل سے سنداس کی بو آتی ہے, غزل نیم وحشت سے شاعری ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ 20ویں صدی کی بالکل نصف کے بعد فراق ہماری اردو شاعری کی آبرو بن جاتے ہیں. فراق جو ہے یا پھر شکیب جلالی کے یہاں جو شاعری پائی جاتی ہے, ناصر کاظمی کا جو شاعری پائی جاتی ہے, شہریار کے یہاں جو شاعری پائی جاتی ہے, ان لوگوں نے اردو غزل کی آبرو رکھ لی ہے. ورنہ 20ویں صدی کے نصف صدی تک دیکھیے, آپ 1950 کے پہلے تک دیکھیے, تو آپ غالب کو مائنس کر دیجیے, میر کو مائنس کر دیجیے, تو اور کوئی ہمارے ایسی شاعری نہیں ملتی جو ہمیں اپیل کرتی ہو, کوئی غزل ایسے نہیں ملتی ہے جو ہمیں اپیل کرتی ہو. بھلا ہو ان بزرگوں کا, ہم جن کو شہریار کہتے ہیں, ناصر کاظمی کہتے ہیں, یا نومی راشد کہتے ہیں, میرا جی کہتے ہیں, اختر ایمان کہتے ہیں, غزل کے حوالے سے یا نظم کے حوالے سے, یا فیض کے یہاں جو شاعری پائی جاتی ہے, چاہے وہ غزل پائی جاتی ہو یا پھر نظم پائی جاتی ہو, ان تمام کے یہاں جو فکر ہے, بھائی بہت پہلے الطاف حسین حالی نے ایک جملہ کہا تھا جب وہ مقدمہ شعر و شاعری ترتیب دے رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں تخیل نہیں ہے, اور تخیل پہ زور دے رہے ہیں. ایسا شخص جو مصطفیٰ کا شیفتہ کے سامنے زانو و تلمس تہ کر کے جو ہے تنقید سیکھ رہا ہے, غالب کے سامنے بیٹھ کر غزل سیکھ رہا ہے, اور وہ شخص کہتا ہے کہ بھئی ہماری غزل میں تخیل کی کمی ہے, تفوس الفاظ نہیں ہے, سادگی نہیں ہے, جوش نہیں ہے. تو آخر کیوں کہا حالی کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ 1857 کے بعد اس زمانے میں گرچہ جو ہے غالب سانس لے رہے ہیں, مومن ہے, بہادر شاہ ظفر ہے, ذوق ہے, باوجود اس کے جو ہے الطاف حسین حالی اس طرح کا جملہ کہہ رہے ہیں, تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو دوسرے شعراء تھے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں, ان کے یہاں جو غزلیں پائی جا رہی تھی وہ غزل معیاری نہیں ہوا کرتی تھی. اور یہی فرق ہے کہ کلاسیکی اور جدید شاعری میں. مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے نوشاد سے ایک سوال کیا تھا کہ کلاسیکی موسیقی اور جدید موسیقی میں کیا فرق ہے, تو نوشاد صاحب نے ایک جواب دیا تھا کہ کلاسیکی موسیقی میں ہمارا دل جھومنے لگتا ہے اور جدید موسیقی سے ہمارا جسم جھومنے لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی باتیں جی جی, جدید واہ شاعری لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو جن کا نام میں نے لیا, ہمارے بزرگ ہیں, لائق احترام ہے, یقیناً ان کے یہاں شاعری پائی جاتی ہے. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں, جن کا شاعری دور دور تک نظر نہیں آتی ہے, لیکن کوئی ربائی کی شکل میں جو اپنے دیوان کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو ایک کالی پیلی غزلیں کہہ رہا ہے, تو ایسے شاعروں سے ہمیں بچنا چاہیے, اجتناب برتنا چاہیے. اس سے ادب کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ادب کا نقصان ہو سکتا ہے. ہمیں یقیناً جو ہے ایسے ادب کی بات کرنی چاہیے, ایسی شاعری کی بات کرنی چاہیے جو ہم اپنے بچوں کو دے کر اسے کچھ سکھانے کی کوشش کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو, جی
जी 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 तो जी तो अब नई नस्ल के जो आपने आपके अंदर जो कायदाना सलाहियत है जिसका आपने तस्करा किया, आप जो है एक तरह से महाज जंग पर भी हैं और काम भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतनी कामयाबी भी आम नस्ल के लिए, आम लोगों के लिए, या जो तालिब इल्म है उनके लिए जो है मुमकिन नहीं। इस तरह की रुकावटें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती है, तो इनसे नंबर आजमाई की क्या सूरत है, किस तरह हम काम कर सकते हैं, कितनी हमें इसके लिए पोटेंशियल की जरूरत है, इस बारे में जरा आप हमारे नौजवानों को पैगाम दीजिए जो उर्दू से खिदमत करते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि फिर मैं अपनी बात से ही अपनी आपकी बात में इजाफा करना चाहूँगा कि जब मैंने उर्दू ऑनर्स में दाखिला लिया था 1985 में, तो एक साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से दाखिला लिया है। मैंने कहा उर्दू ऑनर्स में। कहा तुम मुझे देखते नहीं, मैं आज भी नाकाम हूँ। तो हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर ये होता है, लोग ये समझते हैं कि उर्दू लेकर के हम कामयाब नहीं हो सकते। मैं दूसरी रियासतों के मुतालिक नहीं बात करूँगा, मैं अपनी रियासत मगरब बंगाल के बारे में बातें करूँगा कि अगर हमारे मगरब बंगाल में 200 सिविल सर्वेंट हैं, मिसाल के तौर पे 200 सिविल सर्वेंट हैं, तो 199 उर्दू मीडियम के हैं। तो उर्दू जो है हमें देती है, हमसे लेती नहीं है। उर्दू के अंदर वो सलाहियत है, उर्दू के अंदर इतनी सलाहियत है कि उर्दू हमें हमेशा मालामाल करने की कोशिश करती है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उर्दू ज़बान में तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि मैं तो उन लोगों से ये सवाल करूँगा कि अगर क्या ख़्वाब आप अंग्रेज़ी में देखा करते हैं? क्या आप खाना उर्दू में खाते हैं? आप गुफ्तगू अंग्रेज़ी में करते हैं? आदमी माफ़ी ज़मीर को अपनी ज़बान में जिस तरह से मादी ज़बान में अदा कर सकता है, दूसरी ज़बान में अदा नहीं कर सकता। इसलिए नई नस्ल को चाहिए कि उर्दू ज़बान से अपना रिश्ता उस्तवार करें, यकीनन जो है आप कामयाब होंगे। इसलिए कि मादी ज़बान आपकी शनाख्त का ज़रिया बनती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम जज़्बात में बह जाते हैं। आप अंग्रेज़ी तालीम हासिल कीजिए। आप यकीनन सर सैयद ने का भला हो कि सर सैयद अंग्रेज़ी तालीम की तरफ हमें तवज्जो दिलाई थी। अगर सर सैयद नहीं होते तो आज हम अंग्रेज़ी तालीम से बेबहरा रहते। हमें अंग्रेज़ी तालीम हासिल करनी चाहिए, साथ-साथ अपनी मादरी ज़बान में भी हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, ताकि हम अपनी माफ़ी ज़मीर को दूर-दूर तक पहुँचा सकें। इसलिए हमें मायूस नहीं होना है, हमेशा अपनी ज़बान में गुफ्तगू करते रहिए, अपनी ज़बान में तालीम हासिल कीजिए और यकीनन अगर आप अपनी ज़बान में तालीम हासिल करेंगे, तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि जो बच्चे आईएएस ऑफ़िसर हो रहे हैं। 2 साल 3 साल कबल की बात है कि नदवा के बच्चे आईएएस ऑफ़िसर हुए। आप आईपीएस ऑफ़िसर हो सकते हैं, आप आईएफएस हो सकते हैं, आप रियासती सतह पे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। इसलिए आप स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का असातिज़ा हो सकते हैं। आप यकीनन जो है, लेकिन शर्त ये है कि निहायत ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ, खुश उसलूबी के साथ आप तालीम हासिल कीजिए। इसलिए अक्सर व बेशतर ये होता है कि जिस दौर में हम साँस ले रहे हैं, ये व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। हमारी नई नस्ल जो है व्हाट्सएप और फेसबुक में अपना वक़्त बर्बाद कर रही है। उन्हें वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर ये वक़्त हमारे हाथ से निकल गया, तो हम सिवाय ये कि हाथ मलते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए आपके पास बहुत वक़्त है, लेकिन मेहनत करने के लिए आपके पास वक़्त नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है, उनके लिए मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा कि पढ़ने वाले शहर में आके भूल गए, किसकी माँ ने कितना ज़ेवर बेचा था। तो यकीनन हमारे वालिदैन, हमारी माएँ ज़ेवर बेच करके हमारे अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है या उनकी बेटी जो है, तालीम हासिल करके एक ऐसे मसनद पे पहुँच जाए, जिससे न सिर्फ़ उसका वक़ार बुलंद हो, बल्कि उसके ख़ानदान का वक़ार बुलंद हो, उसके समाज का वक़ार बुलंद हो, उसके इलाके का वक़ार बुलंद हो, उसके शहर का, उसके मुल्क का वक़ार बुलंद हो। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यकीनन अपनी ज़बान में तालीम हासिल करके उस मंज़िल मक़सूद तक पहुँच चुके हैं, जिस मंज़िल मक़सूद की तलाश उन्हें बचपन से थी। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया दबीर भाई। 101 में घंटा 29 मिनट हो गए, 1 घंटे 29 मिनट। और असलम जमशेदपुरी साहब जो है आपको सुन रहे थे, इस्तकबाल आपको कह रहे हैं। सगीर अफराहिम साहब हमारे साथ थे, बड़ी बड़ी शख्सियात। दबीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने जो है दबीर भाई के हवाले से जो है फिक्शन पे गुफ्तगू की, तनकीद पे भी गुफ्तगू की। इनकी शायरी में इन्हें 2 ही नज़में इन्होंने सुनाई। वक्त काफी है, नेट भी बायोडाटा भी, मोबाइल का डाटा भी पूरा हो गया है। तो आप जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका दबीर भाई, आप स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखे, आप आए, हमारे साथ जुड़े। इंशाल्लाह फिर हम, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जब हम रिपीटेशन करेंगे तो आपको फिर हम दावत देंगे इंशाल्लाह। बहुत सी चीजें रह गई हैं, बहुत सी गुफ्तगू रह गई है, तशनगी है, लेकिन वक्त का तकाजा है। हमारे नाजरीन भी 1 घंटे से, 1.5 घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस फिर मैं एक बार इरफान भाई, इरफान आरिफ साहब जो हमारे इरफान भाई हैं, और जावेद अनवर साहब आप जो अभी प्रोग्राम चला रहे थे, दीगर अरकान, बिलखुसूस अपने नाजरीन का, मैंने बिलखुसूस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमारे नाज़रीन ना हो तो हम किसके लिए प्रोग्राम करेंगे। लिहाजा मैं बेशक। तमाम नाज़रीन का, तमाम सामीन का मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाई। यकीनन जो है कहीं-कहीं पे कोई बातें गुफ्तगू करते वक़्त जो है रह गई होंगी, इसलिए कि इस 1 डेढ़ घंटे की गुफ्तगू में तमाम बातों पर सैर हासिल गुफ्तगू तक़रीबन नामुमकिन है। इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि आपका वक़्त भी लिया, लेकिन यकीनन आपकी जो है गज़लों की फरमाइश भी आ रही थी, तो अगर कहीं नज़दीक हो या कहीं अगर कोई एक गज़ल अगर नहीं, अभी अभी कुछ नहीं अभी मेरे पास। फिर इंशाल्लाह फिर कभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यकीनन इंशाल्लाह मैं गज़ल सुनाऊँगा इंशाल्लाह। और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा इंतख़ाब किया। आप पता नहीं गुफ्तगू कैसी थी, इसका फ़ैसला तो आप सबों के हाथ में। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू थी, इसलिए कि आपने खुद देखा होगा कि चाहे वो लंदन हो या न्यूजीलैंड हो या हिंदुस्तान के दीगर जो हमारी रियासतें हैं, तमाम तर जगहों से आज हमारे नाजरीन जो आपको समाअत कर रहे थे, सुन रहे थे। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने तमाम सवालात का जवाब भी रखा, और आपने जो अपने एहसासात को यहाँ पेश किया, तजुर्बात को पेश किया, बड़ी ही खूबसूरती से। जावेद भाई ने भी पूरा मैं कहूँगा कि साथ दिया। हमारे नाजरीन का जो भी सवाल आता गया, वो अपनी ही गुफ्तगू में लेके आप तक पहुंचाते रहे। वो चाहे लंदन से फ़हीम अख्तर साहब हों, अभी इनका भी यहाँ आप देखिएगा कि यानी बहुत सारे ऐसे सवालात थे, बहुत सारे ऐसे नाजरीन थे जिनका मैं नाम तो नहीं ले पा रहा था, क्योंकि नाम तो जावेद भाई ने ही लेने थे। शाजली साहिबा न्यूजीलैंड से थी। हमारे यहाँ से मैं वो कह रहा हूँ कि जो जो मुझे याद है, फ़हीम साहब हैं, सगीर अफराहिम साहब थे, सीमा सगीर साहिबा थी, आरपी सिंह साहब थे, उसके बाद आप देखिए इमाम आजम साहब थे, तब्बू खान साहिबा, असलम जमशेदपुरी हैं। तो बहुत सारे ऐसे नाम के जो हमारे साथ रहते, फातिमा खातून हैं, ये तमाम, नसीम साहब तो लगातार बने रहे हैं, आलम बनारसी साहब हैं, इसके अलावा वाजिद साहब हैं, फिरोज साहब हैं, अतिया परवीन साहिबा हैं, इसके अलावा फरजाना परवीन साहिबा हैं, शिरीन जफर हैं, नुसरत अली खान साहब हैं। बेशुमार नाम है, मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं तमाम तर नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने इतना खूबसूरत जो है ये सेशन जो है वो मिस नहीं किया, आपकी बातें सुनी। यही हमारे लिए बहुत, मैं कहूँगा कि खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ बने रहे। आज जावेद भाई का नेटवर्क भी बहुत ही डिस्टर्ब था, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे दरमियान बने रहे। इस वक्त भी आप देखिए कि आखिरी लम्हे में फिर से स्किप हो गया उनका नेटवर्क। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से, अपने नाजरीन की तरफ से, अपनी पूरी तंजीम की तरफ से दबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल नाजरीन हम फिर आपके रूबरू होंगे किसी नए मेहमान को लेकर। जब तक के लिए अपने मेज़बान जो आज फराइज अंजाम दे रहे थे, मेज़बानी के जावेद अनवर साहब, और हमारे इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मेहमान प्रोफेसर दबीर साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया।